So we start with FR, financial reporting, one of the core subjects, as you know. Look at the change in the name of the subject. You're not dealing with accounts anymore. What you're dealing with is reporting. And what kind of reporting? Obviously, financial reporting. So it's what do you mean by financial reporting? Is not per se only the preparation of balance sheet, P&L and stuff like that. समझना पड़ेगा कि what is the responsibility of the entity while you are preparing your financial statements. Certain disclosures, why such disclosures are there, okay, why such things are compulsory, where are the options available with the entity, okay, that is the whole motive. And the only syllabus in your FR is India's. That's how it is. Chota mota ek do chapter, that is irrelevant compared to the length and breadth of India's itself. So if your syllabus is standards itself, nothing more than that, then I hope you understand that everything is going to be conceptual. And it worsens or it becomes a bit difficult once you talk about Ind AS, because Ind AS is very, very substance over form oriented rather than simply mechanics. A little bit of portion is always there in mechanics, but the whole concept of all the Ind AS is going to lie in one simple concept of substance over form. Every accounting, every presentation that you're going to deal with has to have some practical logics, the practical significance. There is nothing going to be चलिए ऐसा कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है. हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक बैठेगा. Further, with new standards coming into picture, I don't till your attempt comes whether certain standards which are in pipeline will be effective or no. If they become effective, obviously they are like heavy doses of everything. Call it better you take morphine. Really the drug. Yeah, such level. What you have in your syllabus is financial instruments, which itself is very, very, very heavy duty standard, but very important at the same time. Practically, uska bahut bada importance hai. Even IFRS stresses more on financial instruments accounting. One, what I expect to come is already effective, but I don't know why it's not there yet in your books, is insurance contracts. Insurance contract is hell let loose on students. Okay. But let's see, as the time passes, once it comes, we will handle it. But then everything has to have its own common sense, everything has to have its own logic. Try to do something mechanics, you're dead. More dead than CA Inter. CA Inter, you were saved by chapters. The branch kar lo, internal kar lo, amalgamation rat lo. Okay, यहाँ पे कुछ रट पाओगे नहीं. And everything is, as you know, the standards are always interlinked. Okay. So and one more thing, what I understand is the institute is moving more towards case study based accounting or paper pattern, in the sense not per se case study, but वो questions ऐसा पूछेगा कि बहुत practical based रहेगा, practical oriented रहेगा. So you have to have that grip कि भाई इसका 4-5 standard मिला के क्या scenario बनता है, कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. That is actually their motive. Surprisingly, they haven't come out with the absolute syllabus yet, but then that's how it is going to be. Plus, you also have that paper 6E optional selective paper. I'm sorry. So, usme bhi, if you do Ind AS properly, there is one standard over there, subject over there, IFRS, global reporting. Okay. Ind AS mein or IFRS mein, there's around 10% of difference. Rest everything is same. To an extent that when Ind AS were made, even the para numbers were same as that of IFRS. Say for example, IFRS 1 में या IAS 1 में अगर कोई पैरा नंबर 5 जो है, same concept, same thing will be there in Ind AS 1. If in India that para is not applicable, then they didn't delete that paragraph. They gave a note towards the end saying that this para is not applicable in India, but they didn't delete, because they want all the para numbers to be same as in case of IFRS as well as IAS with Ind AS. इतना लेवल का उन लोगों ने मेंटेन करके रखा है कि भाई ऑलमोस्ट सेम है. तो 10-12% मैक्स 15% का डिफरेंस है. इनफैक्ट इफ यू गो ऑनलाइन एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन Ind AS एंड AS, वो 2 या 3 पेज में खत्म हो जाता है. Are you getting it? So it's almost the same thing that you're going to do, even if you decide to go for global financial reporting standards. But then वो बात की बात है. So today we start with some Ind AS. Today we start with the Ind AS, which is very, very important. Easy hai. Okay. So we start with a simple standard, nothing difficult, but conceptually very rich. Very, very, very rich concept. And it's very practical also. It's pure common sense. And when things are based on pure common sense, students find it very difficult. Common sense is difficult to find. So we start with Ind AS 36.
impairment of assets. Obviously, the first thing that you have to understand is what is asset? What is asset? Can you say what is asset? But it's asset. I didn't say fixed asset. Then why do we have a concept of hire purchase and lease accounting if it's to be owned by the entity? Because if you understand impairment of asset समझने के लिए obviously we need to know first what is an asset. And as you know, if you understand the meaning of asset, lot of other standards you understand better. Intangible assets, PPE, investments, now investment property, agriculture, everything has asset. So you need to know what is asset. So asset is defined as, I'm not going into too much of detail, वो बाकी standard में जाएंगे, but asset is defined as a resource of the enterprise which is under the control of enterprise and from which future economic benefits are expected to be received. दो elements होना चाहिए. It should be under my control, not ownership. Legal ownership has nothing to do with control. Control, if you are able to prove without legal ownership, then it's your asset. That's what we learned in lease accounting. So there has to be a control, but as of now, for this standard, control is not my priority, is not my concern. But this is a major concern. There has to be a. We are not dealing with fixed assets. We are dealing with any asset that appears on the asset side. Okay? Ab current asset bolo, fixed asset bolo. When can you record some expenditure as a fixed asset? When can you record some expenditure as a capital expenditure? Is only when you are expecting future economic benefit to be received. If there is no future economic benefit, it is not an asset, it's not a capital expenditure, it will be written off in P&L. सीधा बात है ना, अगर फ्यूचर में बेनिफिट नहीं है तो असेट किस बात है? तो तेरा एक्सपेंस है तो डेबिट मार P&L में. असेट क्यों बता रहा है? असेट कब बता सकते हो? जब फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है तो ही. अगर फ्यूचर में बेनिफिट नहीं है या बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है तो खत्म हो गया, फिर टेक इट टू P&L. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? सो कैन वी से कि whenever you see an asset on the asset side, let's say बैलेंस शीट है अपना और बैलेंस शीट में कोई से मशीनरी है, उसका बुक वैल्यू 100 रुपये है, तो व्हेन यू सी मशीनरी ऑन द असेट साइड एज ₹100, तो मतलब इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, इसलिए वो असेट साइड पे बैठा हुआ है. सेकंड, कितने का बेनिफिट है? मेजरमेंट वाइज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बेनिफिट यू आर एक्सपेक्टिंग? 100. एनीवन एल्स? What's the amount of benefit you're expecting? I'm not saying what you will receive. आज अगर आप एज अ रीडर भी, अगर आप एज अ आउटसाइडर भी अगर आप देखते हो कि भाई 100 रुपए का मशीन है, तो आपको क्या लगता है कितने का बेनिफिट मिलेगा? Whatever X, Y, Z over a period of 10 years, 15 years. I am not concerned with the length of the benefit. Amount, measurement of benefit कितना है? कितना बेनिफिट मिलेगा वैल्यू वाइज? How do you know more than bare minimum 100 तो मिलेगा? यस सर, अगर आप 100 रुपए का असेट खरीदते हो तो ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपए का असेट खरीदा लेकिन मैं बेनिफिट 60 रुपीज का एक्सपेक्ट कर रहा है. अबे तो 600 दिया क्यों तूने? तो तू कितना देता? 60, इन एंड अराउंड 60. बराबर ना? यस सर, अगर कोई एक्स अमाउंट पे जाके आप असेट खरीदते हो तो कम से कम वो एक्स अमाउंट का तो बेनिफिट एक्सपेक्ट कर ही रहे हो. उससे भले ज्यादा आया तो ठीक है, पर उससे कम तो आप एक्सपेक्ट कर रहे नहीं हो. So whenever you see an asset on the asset side of a balance sheet having, say for example, machinery 100 rupees, you are expecting कि ये मशीन से कम 100 रुपए का बेनिफिट मिलेगा. yes. इसलिए जब आप उसको यूज करोगे तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ये बोल के कि मुझे इतना बेनिफिट मिल गया. आप अगर समझो इसका 10% डेप्रिसिएशन रहेगा तो ये 10% किस पे अप्लाई करोगे? ना कि भाई 100 रुपए में से 10% का बेनिफिट मिला तो मतलब 100 रुपए का बेनिफिट एक्सपेक्टेड था. बेयर मिनिमम 100 रुपए का बेनिफिट एक्सपेक्टेड था. ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपए का असेट है, डेप्रिसिएशन में 150 पे चार्ज कर रहा है, डेप्रिसिएशन में 60 रुपीज पे चार्ज कर रहा है. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. वाई? बिकॉज बुक्स में जो वैल्यू अपीयर हो रहा है दैट इज अ बेयर मिनिमम ऑफ बेनिफिट यू आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असेट. डू यू एग्री ऑल ऑफ यू? श्योर? ओके. तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि बैलेंस शीट असेट साइड में जितने भी असेट्स है इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. यस सर,
What if there is an asset which actually is showing 100 rupees ka book value but is not going to give you any kind of benefit to that extent? It might give you benefit only to 80, that's what you expect. भले 100 रुपए का वैल्यू है लेकिन बेनिफिट 80 रुपए मिलने वाला है. Then tell me, is it correct to show the asset at a value of 100 or should I show the asset in the balance sheet at a value of 80 for the readers of the financial statements? 80. Why? You cannot overstate your assets. Overstating of asset is a crime basically. It's a fraud. 80 रुपए का चीज है, 80 रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है, 100 रुपए क्यों बता रहे हैं? 80 भी बताओ. अरे ये सुनो, चलो अभी ये जो 100 रुपीज है, लेट्स फर्दर से कि भाई ये 100 रुपीज पे हम लोगों ने पहले डेप्री चार्ज किया. कितने का डेप्री चार्ज किया? लेट्स से 10 रुपीज का डेप्री चार्ज किया. सो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट? 90 rupees. But what is the amount of future economic benefit we are expecting to receive? Only 80. In our example it was 80. 90 का book value है, 90 का carrying amount है, but benefit हम लोग को कितना लग रहा है? 80 rupees. Then don't you think I should bring this 90 to 80? How should I bring it? Because depreciation is already charged. So what you will do is you are going to bring down the value of this 90 to 80 by charging the difference in the name of impairment loss. What you will be charging? Impairment loss. That reduction in the value over and above depreciation. Over and above what? Depreciation. It's called as impairment loss. Why we need this standard? What is the logic of this impairment and everything? Simple common sense, as we said, is no asset can be carried in the books of accounts at a value more than its recoverable value. More than its what do you mean by recoverable value? In a layman term, in a very crude fashion, the expected benefit, nothing else. The details है वो बाद में देखेंगे, but अगर बेनिफिट जितना मिलने वाला है उससे ज्यादा पे आप अपना असेट को रख सकते नहीं हो. यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन इफ योर थिंग्स आर नॉट मैचिंग. व्हाट इफ द कैरिंग अमाउंट इज 90 बट द एक्सपेक्टेड बेनिफिट आर 120. यू आर एक्सपेक्टिंग मोर बेनिफिट्स, देन नथिंग, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट कीप इट एज 100. यू कैनॉट गो अपवर्ड. कंजर्वेटिज्म इज सेटिंग. Yes or no? What is conservatism? What's conservatism? Principle of conservatism क्या है? That you said and you were thinking for last 6 months. Yeah, what is conservatism? The principle says you are supposed to provide for future losses but ignore any kind of future incomes or gains. Can do nahi, you have to provide. You don't have an option. You cannot give an option to the entity. Should I create a provision or no for any kind of future losses? You have to. They have to provide. They can do anything, but should they or they shouldn't? It's a big question. So if they say that the carrying amount is 90 and the expected benefit is 120, I am not supposed to go upward. If you want to go upward, there is a different standard for that. In day 16 is there, PPE, where you do the revaluation of asset. That we'll see later on. या intangible asset रहेगा तो again 38 is there where you do the revaluation of the asset, upward revaluation of the asset, but then that's not our concern right now. So our concern is going to be only the downward revaluing of an asset or downgrading the value of the asset. Yes, if your carrying amount is 90 but the actual benefit or the recoverable amount of the asset is only 80, then you need to do or recognize the impairment loss, क्योंकि आज ही मालूम है कि भाई इसका benefit नहीं है. Have you ever seen a concept like this? Seen a concept like this? Yes. You will understand that once you do India 16. What are the bases on which you do the revaluation? So for that you have to first learn that. Okay, what is the base and how it's a bit different compared to. ज़्यादा difference नहीं है. एक तो disclosure का difference है और दूसरा accounting का थोड़ा सा difference है with OCI coming into picture. But then not much of difference is there. But as of now, what was my question? How have you done this kind of accounting? Inventory cost or NRV, whichever is lower. Technical jargons were different. Concept was still the same. You cannot carry your asset, which is inventory, at a value more than the benefit expected or the recoverable amount of that asset. कॉस्ट अगर इन्वेंट्री का 100 रुपया है लेकिन एनआरवी अगर 90 है तो आपको एनआरवी पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि आज के तारीख में उसका बेनिफिट 90 ही दिख रहा है मुझे. सेम कॉन्सेप्ट एक्सटेंडेड टू ऑल अदर असेट्स नाउ. इनफैक्ट व्हेन यू डू द स्कोप, व्हेन वी रीड द थियरी ऑफ द स्टैंडर्ड, स्कोप में से
they have excluded inventory. Why? Because inventory का खुद का स्टैंडर्ड है, तो ये जो लॉजिक है वहां पे अप्लाई किया जाएगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड कवर करेगा, तो यहां पे आने वाला नहीं है. इन्वेंटरी इज नॉट कवर्ड. एनी असेट विच हैज इज ओन स्टैंडर्ड and impairment is covered in that particular standard, to that asset this standard is not applicable. 36 is not applicable. This is the residual standard. What is this? जिसका कोई माई बाप नहीं है उसका इम्पेयरमेंट ये देख लेगा. अगर डेटर्स है, फाइनेंशियल असेट्स है, जिसका इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करना है, इंडिया 109 इज देयर. ओके, एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रोसेस में असेट, कॉन्ट्रैक्ट असेट जनरेट हो रहा है, उसका इम्पेयरमेंट इंडिया 115 देखता है. तो वैसे अगर किसी एसेट का खुद का स्टैंडर्ड है और उसका इंपेयरमेंट उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कवर्ड है, तो ये स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल. सो वी आर डीलिंग विद द रेसिडुअल कैटेगरी. आर यू गेटिंग दिस? बट देन दिस रेसिडुअल कैटेगरी कवर्स लॉट ऑफ अदर एसेट्स, स्पेशली पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर कवर्ड अंडर दिस. ऑल पीपीई विल बी कमिंग आउट ओवर हियर. टैंजिबल, इंटेंजिबल सब इधर आ जाएगा. आर यू गेटिंग इट? सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम asset accounting perspective. So once again, if your carrying amount of the asset is more than the recoverable amount of the asset, then we need to recognize something known as impairment loss. Yes or no? Carrying amount less, what is R? What is R? Recoverable amount. Now what do you mean by carrying amount and what do you mean by recoverable amount? Anyone knows what is carrying amount? Till that time I will select the color. Yeah, time out. How do you calculate carrying amount? Carrying amount is original cost of asset minus accumulated depreciation and minus any kind of impairment loss. Which impairment loss? Past का कोई, अभी का नहीं. पहले अगर कभी तुमने कुछ इम्पेयरमेंट किया रहेगा तो वो भी माइनस करने के बाद आज के तारीख में तुम्हारे बुक्स में जो वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एज carrying amount. Basically in very layman 11 12 standard का language है, book value है. क्या है वो? Book, the value you are putting in the books, but technically carrying amount. Are you understanding? तो सब पता है अपने को. The main game is recoverable amount. What do you mean by recoverable amount? No translation into Hindi. So basically recoverable amount is the amount that you are going to recover. That's what you are trying to say. Wow. Is your intention to sell? And you're deriving that thing from inventory concept. Again, you're deriving it from inventory. Nonsense. So recoverable amount, what is recoverable amount? Simple common sense. Why you think so technical? तुम्हारे पास एक asset है, से तुम्हारे पास गाड़ी है, उससे तुमको बेनिफिट चाहिए. कितने तरीके से बेनिफिट ले सकते हो? मैक्सिमम दो तरीके से बेनिफिट ले सकते हो. एक, बेच दो, पैसा ले लो. दूसरा, यूज करके बेनिफिट लो. यूज कैसे करेंगे? वो तेरे पे, या तो तू खुद चला या तो भाड़े पे दे, ट्रैवल एजेंसी को दे दे, बट अल्टीमेटली इट्स अ यूज. और तीसरा है तरीका, सोचो, नहीं है, या तो बेच के पैसा वसूल कर लो या तो यूज करके पैसा वसूल करो. और तीसरा तरीका कौन सा है? घर है तुम्हारे पास, हाँ बोलो. So there are only two ways in which you can recover the benefit from a particular asset. Either you sell it off today or you use it and get the benefit in future. So recoverable amount is fair value less cost to sell, or something known as value in, okay, so FE minus CTS, या फिर FE minus CTS is fair value less cost to sell, and then value in use. Now many students think that FE minus CTS is nothing but NRV. What is NRV? Net realizable value. So are they one and the same? Are they one and the same? Absolutely no. They are not same. They are absolutely different. In one line, NRV is entity specific value, whereas fair value is market specific value. दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. क्या फर्क है? उसके लिए सबसे पहला आज FE माइनस CTS सीखेंगे. NRV तो तुमको याद होगा नहीं. I had warned you when I did AS2 कि this is what students forget because it does not come in regular use, but that does not mean that you forget it. So we will deal with it later on. Even if you say expected selling price is to be subtracted, selling price has to be entity specific. then अगर मैं
मेरा मेरा कंपनी या मेरा वेयर हाउस मार्केट के नजदीक है तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर नहीं होएगा। किसी और का कंपनी दूर है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर होएगा। तो दैट मेक्स द एनआरवी होल एनआरवी कैलकुलेशन एंटिटी स्पेसिफिक। Fair value is absolutely governed by different AS. That is Ind AS 113 will be governing what do you mean by fair value. फिर उसमें cost to sell आता है नहीं आता है, there are other parameters that kicks in, but then it is not the same. This is market specific. What is this? Market specific. Fair value आ गया मतलब it is not net selling NRV. There is a minute difference, but still that difference is there, which you as a student should understand. So FE minus CTS is one way of recovering the benefit. Another is value in use. So basically आज बेच दो तो कितना पैसा जेब में आएगा। आज बेचा तो पैसा कितना मिलेगा वो नहीं चाहिए, रोकड़ा कितना जेब में आएगा वो बता। समझो अगर आज मैं एसेट बेचने गया तो 100 रुपया मिल रहा है, लेकिन फिर उसको बेचने के चक्कर में ब्रोकरेज, लीगल एक्सपेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन, XYZ करने की वजह से 10 रुपए का खर्चा भी होगा, तो रोकड़ा कितना आएगा 90। तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 100, बट वी आर नॉट कंसर्न विद द फेयर वैल्यू, वी आर कंसर्न विद व्हाट इज द कैश दैट आई एम गोइंग टू रिसीव 90। तो FE minus cost to sell. Or details later on, but the one way of recovering the benefit of that asset is FE minus CTS. Here, should there be an intention to sell? No, I don't have intention to sell. मैं खाली ये चेक कर रहा है कि आज बेचा तो कितना पैसा मिल रहा है। You bought a house, बराबर है, तो बोला 1 करोड़ में घर खरीदा, फिर उसमें मस्त ऐसा इंटीरियर डिजाइनिंग करवाया, लग्जरियस बना दिया एकदम, फिर ब्रोकर को बुलाया, तो अभी बेचेगा तो कितना मिलेगा। बोला बेचने का क्या, नहीं बेचने का नहीं है, खाली वैल्यूएशन चाहिए। बोला अभी 1 करोड़ 20 लाख तक मिल जाएगा, बेचने का नहीं है, खाली क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यूएशन। हियर यू डोंट हैव एनी इंटेंशन टू सेल, यू डोंट हैव टू हैव एन इंटेंशन टू सेल, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि भाई व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट एज ऑफ टुडे। यस, देन कम्स वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज है फ्यूचर में यूज करके जो बेनिफिट आएगा, कैसे कैलकुलेट होता है विल सी लेटर ऑन, but before that there's one more concept that you will understand. So either FE minus CTS or value in use, दोनों में से कौन सा recoverable amount आएगा, is the benefit that you're going to receive from usage. So I know whichever is higher, because if I'm a businessman, a bit sensible one, I will go for whatever gives me more benefit. सीधा बात है, मेरे पास गाड़ी है, मैं इसको 5 साल यूज करेगा ना, मेरे को 1000 रुपए का बेनिफिट है, आज बेचा ना तो 1100 मिल रहा है। मैं बेचेगा नहीं बेचेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आज की तारीख में वैल्यूएशन किसका ज्यादा है। मैं जब घर बेचने जाता है, यस, जो अगर घर नहीं, घर बेचना भी नहीं है, समझो घर का वैल्यूएशन निकालना है, तो मैं क्या बोलेगा, मैं इसमें रहेगा तो मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा, और आज अगर बेच दिया तो कितना बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आज बेचने से ज्यादा पैसा मिला तो घर बेच के मैं घर से पे रहेगा, बट वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर मेरे को किसी रिश्तेदार को बोलने का है तो मैं व्हिचएवर इज हायर ही बोलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे यस और नो, दैट्स हाउ इट इज। व्हिचएवर इज हायर इज अ प्रूडेंट पाथ टू बी सिलेक्टेड बाय अ बिजनेसमैन। Whether he will select that, whether he will sell it, God only knows. If he sells, then how he will do the business if you are dealing with PPEs? असर थोड़ी बेचना शुरू कर देगा, अरे ज्यादा पैसा बेच दे मार्केट ऊपर बेच दे, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस बंद हो जाएगा तेरा। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ऐसा नहीं है कि तुमको एक्चुअली बेचना ही चाहिए, या बट देन वैल्यूएशन पर्पस के लिए विच एवर इज हायर विल बी द कंसिडर्ड एज द वैल्यू फॉर दैट और द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? इट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या फिर वैल्यू यूज, या तो बेच के पैसा जितना जेब में आ रहा है वो, या तो यूज करके जो बेनिफिट मिलेगा वो, विच एवर इज higher is what you are supposed to select as a recoverable amount. Are you getting it? How would you calculate value in use? Common sense. There is nothing technical. It's pure common sense. Technicalities बाद में आएगा. Common sense आ जाने के बाद technicalities एक एक technical item, अच्छा ये item आएगा ये नहीं आएगा, वो technical level हो गया। Common sensically क्या आएगा? तुमको सीधा सीधा बोला जाएगा कि भाई दम आलू का सब्जी बनाने का, तो कॉमन सेंसिकली क्या आएगा? आलू, और उसको बनाने के लिए दम चाहिए। सिंपल एज दैट। रेस्ट फिर ये मसाला ने वो मसाला ने, इतना पानी ने उतना पानी ने, वो बाद में देखेंगे। अरे बेसिकली क्या आएगा? बट एवरी एसेट नीड नॉट गिव यू द रेवेन्यू। चलो ठीक है, रेवेन्यू सेल्स, have you forgotten that I have a habit of laying traps?
What do you mean by revenue? When you say or use the word like revenue, what do you intend to say? Sales? But then that will be FE minus CPS, right? If you intend to sell the asset. Value in use. You said revenue. What do you mean by revenue? Just in general, like, I don't want perfect answer. Are you suggesting sales? Revenue basically means sales. Mota moti. No. Is basically net cash, or to be inflow. Here, did we deal with fair value or did you deal with the रोकड़ा that comes into pocket? रोकड़ा. तो वहां पे भी कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए? रोकड़ा. यहाँ पे नेट रोकड़ा लिया तो वहां पे भी क्या चाहिए? नेट रोकड़ा. क्या बेच दिया तो नेट रोकड़ा कितना मिलेगा और यूज किया तो नेट रोकड़ा कितना मिलेगा? अरे बनिया बुद्धि है. दिस इज प्योर, लाइक वो सब्जी वाले का भी ये बिजनेस माइंडसेट रहता है. इतना तो सबको पता रहता है, खाली उसको टेक्निकल जार्गन दे दिया तो मतलब का बड़ा तोप नहीं बन गया वो. स्टिल वेरी सिंपल. ऐसा किया तो कितना रोकड़ा मिलेगा, ऐसा किया तो कितना रोकड़ा मिलेगा. ये तो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं. बस में गया तो इतना एक्सपेंस होगा और रिक्शा में गया तो इतना एक्सपेंस होगा कैश में. वही रिक्शा में अगर शेयरिंग आ गया तो वापस कैश में तेरा आउटफ्लो चेक करेगा तू. तो ये तो अपन नॉर्मली भी करता है. इसमें क्या ग्रेट है? ग्रेट कुछ नहीं है. ग्रेट तब आएगा जब टेक्निकलिटीज घुसना शुरू होता है. टिल दैट टाइम इट्स स्टिल कॉमन सेंस. इसको बेचने से रोकड़ा कितना मिलेगा और यूज किया तो रोकड़ा कितना मिलेगा. अरे गेटिंग इट? वो जो रोकड़े से मतलब है, रेवेन्यू से मतलब नहीं है. रेवेन्यू बोला तो फिर वो सिर्फ सेल्स हो गया, एक्सपेंस माइनस नहीं हो रहा है. तो अ बेटर कॉन्सेप्ट वुड बी नेट कैश फ्लोज या नेट कैश इनफ्लोज. व्हेन आई से नेट मींस नेट ऑफ व्हाट? हाउ डू यू कैलकुलेट नेट कैश इनफ्लोज? वेल आई विल गो फॉर कैश इनफ्लोज that are generated from the use of the asset minus cash outflows which are required to generate that cash inflow. Yes or no? Yes. अगर मैं मशीन का एग्जांपल लूं तो मशीन यूज करके गुड्स बन के जो पैसा मिलेगा बेचने से माइनस वो मशीन यूज किया तो उसमें जो खर्चा हुआ, मटेरियल का खर्चा होएगा, मेंटेनेंस का खर्चा होएगा, एडमिन का खर्चा होएगा, वो सब खर्चा माइनस भी तो कर. फिर नेट नेट प्रॉफिट जो तेरे हाथ में आया इन फॉर्म ऑफ रोकड़ा या कैश is considered to be the value in use. So again we are targeting net cash, but net cash through use, net cash through sale. So the comparison is balanced. Are you understanding this? Yes or no? Anyone has a doubt? Is the comparison balanced? The comparison is wrong because of timestamps. In the sense, FE minus CPS is आज बेचा तो कितना रोकड़ा मिलेगा, और वो तो वैल्यू इन यूज तो फ्यूचर कैश इनफ्लोज का बात हो रहा है, फ्यूचर कैश आउटफ्लोज का बात हो रहा है. 10 साल, 5 साल, 20 साल, इतना लेंदी पीरियड ऑफ टाइम का कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज का कंपैरिजन चल रहा है. हाउ इज दैट कंपेरेबल? ये आज का है और वो 15 साल या 5 साल का है. 15 भी छोड़ो, 5 साल का है, 4 भी साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा तो भी कंपेरेबल नहीं. ये आज का है. इनफैक्ट इफ यू गो वन स्टेप अहेड, कैरिंग अमाउंट भी आज का है. अगर कैरिंग अमाउंट आज का है तो रिकवरेबल अमाउंट भी आज का ही चाहिए. रिकवरेबल अमाउंट आज का चाहिए तो एफई माइनस सीटीएस आज का वैल्यू देगा. लेकिन व्हाट अबाउट दिस? ये आज का वैल्यूज नहीं दे रहा है, ये फ्यूचर का दे रहा है. तो फ्यूचर को क्या करना पड़ेगा? आज पे लाना पड़ेगा. सो इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो. When I do that present value, even this will come at today's value. So now everything is at today's value. Only then I can calculate the impairment. वरना कंपैरिजन कैसे सही है? कैरिंग अमाउंट आज का, एफई माइनस सीटीएस आज का, फेयर वैल्यू फ्यूचर का, क्या कंपेयर क्या हो रहा है यहाँ पे सब? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बरोबर ना? श्योर? पक्का? ऐसा तुमको ऑप्शन दिया जाएगा कि देखो मालूम है तुम्हारा उम्र जब 50 साल होएगा तो बाईपास का जरूरत पड़ेगा. आज क्या 20-25 साल के रहोगे तो 20-25 साल के बाद बाईपास का जरूरत पड़ेगा. आज अगर 15 लाख हो रहा है तो तभी से 40 लाख का खर्चा होएगा. और वो सामने ऑप्शन दे रहा है कि काम करो, देखो 40 लाख का खर्चा नहीं करने का है ना तो आज जिम ज्वाइन करो. आज जिम का वैल्यू है सिर्फ 17 लाख. जिम ज्वाइन करो, 17 लाख में जिम ज्वाइन करो, पर एनम 17 लाख पर, ज्यादा कुछ नहीं. डज इट मेक एनी सेंस? तो ये बोला हाँ यार 40 लाख का खर्चा 17 लाख में हो जाता है, मजा है. डज इट मेक अ सेंस? बोलेगा भाई 40 लाख कितने साल के बाद है, आज कितना है जिम, मतलब आज बाईपास का कितना है? 15. तुम्हें बाईपास करा देगा 2 लाख भी बचेगा.
Are you understanding this? So you are comparing what, if I don't put that present value, you are comparing that 15 lakh with 40 lakhs. Does not make a sense. So recoverable amount is higher of FE minus CTS या value in use. What is value in use? Present value of future cash inflows expected to be generated from that particular asset. Are you understanding? Yes or no? And then carrying amount, as you know, and if the carrying amount is more than the recoverable amount, the impairment will kick in. What do you think? अगर समझो carrying amount 100 रुपए का था और recoverable, अच्छा क्या था अपना value ऊपर का 90 था carrying amount और ये 80 था, तो 10 रुपए का जो impairment loss है उसके लिए मैं journal entry क्या पास करूं? What should be the journal entry for that? ये expected loss है जो आज recognize करना है. So what should be the entry? Impairment loss to asset, and that impairment loss will be taken to, of course, PM. आज का loss है तो record in current year's profit and loss account. Are you understanding this? Yes or no? Sure. Then we start moving in the technicalities. Okay. चलो. When should you do this impairment accounting? कब करना चाहिए? मतलब obviously, see, you have the asset. Business है तो assets तो रह गए. So what should I do? Should I keep on doing this kind of comparisons every year? Close. Now I have 5,000 crores of asset. What do you think? What will be the time taken to do this kind of comparison for each and every asset? Do you think the entity itself is equipped and qualified enough to do the valuations of all kind of assets? So you will need to hire some professionals. They are going to be expensive. Are you suggesting that we should do this exercise every year and spend lakhs and lakhs of rupees just to see whether the recoverable amount is more or no? हो सकता है सब करने का पता चले recoverable amount more है ही नहीं, मतलब it's more actually, carrying amount is less, nothing, everything is gone. Standard किस बात करेंगे? So when to do this impairment testing? When should you test the asset for impairment? Standard says only if there are indicators, do this. Only if there are, ऐसा लग रहा है तुमको कि भाई इस asset का recoverable amount शायद इतना नहीं है जितना लग रहा है, then you go for testing. रोज जाते हो क्या ब्लड लैब में? जाते हो? अगर फ्री में भी करता रहेगा तो रोज जाते हो क्या? कब जाते हो? सब लगे कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर बोले कि भाई चेक कर लो तो चेक कराते हैं. तो बस वैसा ही है, इंडिकेटर आ तो ही, वरना नहीं. तो entire testing, entire comparison of carrying amount and the calculations of recoverable amount will be done only if there are indicators. There are two types of indicators the standard speaks about, is internal indicators and external. चलो, क्या लगता है आपको इंटरनल इंडिकेटर्स में क्या आएगा? क्या ऐसा एलिमेंट है जो ट्रिगर करेगा कि शायद इसका टेस्टिंग करना चाहिए? कॉमन सेंसिकली क्या करो? तो वो एक्सटर्नल हुआ कि इंटरनल हुआ? क्या स्पैर लग गया तो बचा तो कुछ नहीं है, अभी क्या करेंगे टेस्ट? राख, सम काइंड ऑफ डैमेज, फिजिकल डैमेज. देन 4 करोड़ का मशीन है, कम से कम 2 ट्रेलर लगता है उसको उठाने के लिए, कौन लेके जाएगा? That's all. One physical damage. Theft is not a case. If the asset is gone, why are we doing impairment testing? Of what? The amount of technicalities we have about machines is only कि उसमें फ्यूज होता है, मोटर होता है, बस उससे ज़्यादा अपने को इंजीनियरिंग नहीं आता. Why you are doing that? But that does not indicate कि इसका बेनिफिट कम हो गया ना. स्ट्राइक हुआ उसके मतलब ये थोड़ी है कि एसेट का बेनिफिट कम हो गया. अब नॉर्मल सर्कमस्टांस you're dealing with. It's external factors, don't you think so? आपने खुद ही ऐसा कॉस्ट बढ़ाया, अभी 2 दिन पहले भाव बढ़ाया था, सैलरी बढ़ाया था, आज मूड है. फिजिकल डैमेज, हाँ बोल. तो वो इंटरनल कैसे हुआ? Okay, let's handle external first. हाँ, technological, political, economic change in environment. Anything else? फिर
सब आ गया सब गवर्नमेंट चेंज हो गया, डिमांड कम हो गया, लॉ चेंज होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। कल उठ के अगर इंडिया ने बोल दिया मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट्स और मानिक चंद इज बैन इन इंडिया, तो जो मशीन्स ये बना रहा है उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा ओवरनाइट। ऐसा नो, चलो पॉलिटिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, लीगल चेंज, व्हाट एल्स, फैशन चेंज बिकॉज ऑफ, हो सकता है डिमांड कम हो जाए किसी भी चीज का, रिडक्शन इन डिमांड मोटा मोटी। देन these all indicators now, I want to listen only one thing, rest is all time personal, implied also. One that proves that yes, you are listening. We are hearing but we are not listening. Anyone? Increasing rate of interest, ये दिख रहा है क्या? ये कैसे कैलकुलेट होता है? At some rate of interest, if that rate of interest goes up in the market, this comes down. If this comes down, there is a probability that the recoverable amount is going down, and if there is a probability that the recoverable amount is going down, you better check the asset for impairment. Higher the rate, lesser the present value. I hope you know that. हो सकता है ना, आई डिडंट से कि इम्पेयरमेंट होगा, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी है, सो चेक इट फॉर इम्पेयरमेंट, चेक इट, ओके, जस्ट डू द वैल्यूएशन, सी वेदर इज देयर और नो, देन फॉरगेट इट। ऐसा थोड़ी है कि ब्लड रिपोर्ट कराया, अरे अरे अभी तो दवाई लेना ही पड़ेगा, मतलब नॉर्मल है, नहीं नहीं अभी तो दवाई लेना ही पड़ेगा, रिपोर्ट कराया, क्या नॉनसेंस है। हाँ, रिकवरेबल अमाउंट कम होएगा, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ना इट विल गो डाउन। तो अगर ये कम हो रहा है, बरोबर है, तो ये चेक करना पड़ेगा ज्यादा है कि नहीं उससे। अगर इन केस ये कम रहेगा हाइपोथेटिकली, तो फिर ये कम होएगा, तो फिर इंपेयरमेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो टेस्ट तो कर, मैं कहां बोल रहा कि इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर ले, नहीं रहेगा तो भी रिकॉर्ड कर ले, ऐसा थोड़ी है, चेक तो करना पड़ेगा। आर गेटिंग इट? So if there is an increase in the rate of interest which was used in the calculation of present value, you might have to check for impairment. What else? Internal में, but we are talking about impairment loss over and above depreciation. Impairment always comes after charging depreciation till date. अगर आपने करंट ईयर में 3 महीने के बाद इम्पेयरमेंट टेस्टिंग किया, तो पहले 3 महीने का डेप्री चार्ज करो, आज का वैल्यू निकालो, फिर उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करो। सो वी आर डीलिंग विद द लॉस ओवर एंड अबाउट डेप्रिसिएशन, वी आर नॉट डीलिंग विद डेप्री एट ऑल। डेप्री इज कवर्ड इन इंडिया 60 पीपी, बट किसी रीजन से लाइफ कम हो जाता है, जैसे बोला डैमेज हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया, यस इट्स द सेम पॉइंट, बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू द सेम पॉइंट। चेंज इन द मैनर ऑफ ऑपरेशंस, हमने कुछ और प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी कुछ और पे ज्यादा फोकस कर दिया है, तो बनाना ही कम कर दिया, तो इसका बेनिफिट कम हो जाएगा, देन यू माइट हैव टू चेक इट फॉर इम्पेयरमेंट। यस, चेंज इन द मैनर ऑफ डूइंग द बिजनेस, चेंज इन द बिजनेस इटसेल्फ, इंटेंट अलग हो गया, पहले कुछ और बनाने का था, अभी तुम्हारा मन नहीं है। इंटरनल फैक्टर्स लाइक तुमको ऐसा लग रहा है कि बेनिफिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस कैश लॉसेस होते जा रहा है, तो जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया था बेनिफिट, शायद ऐसा बेनिफिट हो रहा नहीं है, बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन। तो एनीथिंग कैन ट्रिगर द इंडिकेटर सेइंग दैट कि भाई इसका शायद बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। या तो तुमने बिजनेस चेंज कर दिया, बिजनेस का तरीका चेंज कर दिया, पहले बहुत लेबर इंटेंसिव था, सो स्लोली यू आर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव, या कैपिटल इंटेंसिव था, यू आर मूविंग टुवर्ड्स लेबर इंटेंसिव। ईदर वेज जहां से मूव अवे कर रहे हो उसका वैल्यू कम ही होने वाला है, उसका बेनिफिट्स कम ही मिलेगा तुमको। अरे यस और नो? या डैमेज हो गया एक्सटर्नल में, नंबर ऑफ फैक्टर्स है, देन होल मार्केट इज ओपन, यस सर। So but only when these indicators are there, or when there is some trigger point or some of the indicator flashes, at that time you will test the asset for impairment. Not all asset also, जिसका इंडिकेटर था वो। अभी ऐसा डिमांड कम हो गया, अबे तो मशीन्स को इंपेयर करना, बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग को क्यों इंपेयर कर रहा है? Doesn't make a sense. तो जिस असेट के रिलेटेड वो इंडिकेटर्स फ्लैश हो रहा है उसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लो, सबका करने का जरूरत। I'm getting what I'm saying. Aren't you tired? It's too much to absorb, because there is too much to absorb. You are doing CA final.
अरे गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, बट इट्स कॉमन सेंस. इसमें क्या क्या इसमें कौन सा टेक्निकलिटीज अब तक चालू किया है? बनिया बुद्धि है ये सब. जस्ट जार्गन्स नया ना हो फेयर वैल्यू इज कॉस्ट टू सेल. तो मतलब आज भेजो तो पैसा कितना मिलेगा? सिंपल है. जार्गन्स खाली उन लोगों ने डाल दिया है, तो उससे क्या लॉजिक थोड़ी चेंज होता है. लॉजिक पकड़ के रखो तो सब समझ में आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का? श्योर? नाउ standard says that impairment testing should be done only when there are only if there are indicators. बरोबर है? Only if there are indicators. This principle, yeah, this logic has 3 exceptions to it. किस चीज का एक्सेप्शन है कि भाई इंपेयरमेंट टेस्टिंग तब करना चाहिए जब कोई इंडिकेटर हो. ये जो रूल है उसका 3 एक्सेप्शन है. इसका एक्सेप्शंस को समझने के लिए we will have to go to some other Ind AS. So we enter into the zone of Ind AS 38. Ind AS 38. Now you don't know 38 क्या होता है, so I will give you a reference of AS. AS 26. Now you don't even remember what is AS 26. Oh, good. Just killed yourself. Yeah. So let's enter into AS 26 intangible, Ind AS 38 intangible accounting. बराबर है? intangible assets का accounting. और एक है, मतलब इसमें 2 कवर होता है. तीसरा आएगा कवर होता है Ind AS 103 काउंटर AS 14 amalgamation. Okay? So we'll see that. 14 बाद में देखते हैं. पहले 38 में जाता है या पहले 26 में जाता है फिर 38 में आएंगे. So we start with what was there in AS, how it has changed in 38 in case it is changed, and then we see what the exceptions are. So let's go to 26. Intangible assets, are they depreciated or amortized? Amortized. They are amortized. Over what? Which life? Expected life. Or the estimated useful life. For what? नहीं बोला तूने, वो तेरा प्रॉब्लम, तभी बोलना चाहिए था. हाँ, शादी हो जाने का आई लव यू बोल के क्या मतलब? Once you are enslaved, don't think about freedom. The amortization of intangible assets happens over the estimated useful life. So for amortization, we need a life of that asset. What I'm trying to say is, you can amortize the intangible asset only if the life is determinable. अगर लाइफ कैलकुलेटेबल है, डिटरमाइनेबल है इंटेंजिबल एसेट्स का, तो ही तो एमोर्टाइजेशन कर पाओगे ना. एमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. तो जब डिनोमिनेटर ही नहीं है तो उसको वैल्यू को स्प्रेड किस पे करेगा तू? यस और नो? ब्रेड बटर खाना है, बटर है, ब्रेड नहीं है, तो ब्रेड स्प्रेड किस पे करेगा? आई नीड अ बेस टू स्प्रेड इट ऑन. यस, दैट इज यूजफुल लाइफ. लेकिन अगर लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है तो क्या? Are you understanding the situation first of all? Are you getting it? तो क्या करने का? AS 26 क्या बोलता है? AS सर बहुत पहले किया था सर, once upon a time, डायनासोर के एज में, तभी पढ़ा था AS. बोलो. तो AS 26 ने इसका जुगाड़ लगाया कि भाई जरूरी नहीं है कि हर इंटेंजिबल असेट का लाइफ डिटरमाइनेबल हो. सी दिस प्रॉब्लम डज नॉट कम विद टैंजिबल असेट्स. वहां पे ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है. बोलता जो भी लाइफ है स्प्रेड करो, क्योंकि लाइफ डिटरमाइनेबल होगा, क्योंकि देयर इज अ फिजिकल फॉर्म दैट यू आर डीलिंग विद. इंटेंजिबल में ज्यादा प्रॉब्लम होता है बिकॉज देयर इज नो फिजिकल फॉर्म. तो हो सकता है कि किसी इंटेंजिबल असेट का लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है, फिर क्या करना है उसका? तो स्टैंडर्ड ने एएस का जो एरा था, एएस जब बना था तभी सब लोग बोला एक काम करो, बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन द टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व, दे डिसाइडेड इसका लाइफ मैक्सिमम 10 साल, उससे ज्यादा नहीं. कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं. लेकिन कोई आके बोलेगा नहीं मेरे पास एविडेंस है कि इसका एक्चुअल लाइफ है ना 10 से ज्यादा है. हाँ तो एविडेंस है तो ठीक है, इफ इट इज जस्टिफाइबल, इफ इट इज व्हाट, देन यू मे गो अबाउट 10, बट बाय डिफॉल्ट ऑलवेज मैक्सिमम 10. और भी सबके लिए नहीं, जिसका लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है उसके लिए एज्यूम्ड यूजफुल लाइफ इज टेकन एज मैक्सिमम 10 years. ये किसका प्रिंसिपल है? एएस का. इंड एस 38 में आओ. इंड एस 38 बोलता है ये इंटेंजिबल असेट का लाइफ डिटरमाइनेबल है नहीं है, तो फिर एमोर्टाइजेशन मत करो. बोला एजम, बोला क्यों करना है एजम्पशन? एजम्पशन करोगे उतना ही तुम्हारा तो फिगर्स आर्बिट्री हो रहा है. योर पीएनएल इटसेल्फ वोंट बी शोइंग द
the way the profit it should have shown. You are doing everything on assumption basis. What if इसका लाइफ 10 से कम रहेगा तो तेरा एमोर्टाइजेशन पर एनम बढ़ना चाहिए था, जो नहीं बढ़ रहा है. ये ज्यादा रहेगा तो कम होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है. तू ऐसे ही 10 साल के हिसाब से कर रहा है ना, एजम्पशन नहीं करना है, छोड़ो इसको. As per Ind AS 38, if the life of intangible asset is not determinable, it is not subject to amortization. जबकि AS 26 बोलता है कि नहीं मैक्सिमम 10 साल लेके कर लो. बोला नहीं, मैं एजम्पशन नहीं करेगा. Ind AS बोलता है नॉट एमोर्टाइजेबल. जबरदस्त. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कि ऐसे बोला आपने? क्यों ओवरस्टेट दिखेगा जब उसका लाइफ ही डिटरमाइनेबल? अच्छा, लैंड को आप डेप्रिशिएट करते हो क्या? दो इट्स टैंजिबल, डेप्रिशिएट करते हो, मींस लैंड इज ऑलवेज ओवरस्टेटेड. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. किसने बोला नहीं होता है? यू हैड अ पीस ऑफ लैंड, बाजू में अर्थक्वेक आ गया, बोलो. रिवर बैंक्स पे था, फ्लड आता है एवरी ईयर, वैल्यू कम होएगा. ऐसा मत सोचो कि रियलिटी मार्केट सीधा ऐसे ही जाता है हमेशा. एक्चुअल वैल्यू क्या है कैसे मालूम पड़ेगा जब लाइफ नहीं दे? कैसे कम हो रहा है? तो अभी क्या करने का फिर? दो तरीके के चार्टर्ड होते हैं. एक जो जॉब करते हैं, जो बुक में लिखा रहता है ना वो फॉलो करते रहते हैं गधे के जैसा. दूसरे होते हैं जो एएस का कमिटी में बैठे रहते हैं, जो एएस बनाते हैं. वो लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, कुछ होगा करके नहीं बैठ जाते हैं. क्या करना है वो सोच. एंड आई एम नॉट फूल टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. I hope you understand. I have given you required material. Make an answer out of it. No. Wait. Let everyone think. Let's give everyone time. Out है. फिर कोई बात है. Wait. 2 minutes. मतलब इतने साल तक कुछ नहीं. और पास को पता चला आज खत्म हो गया सर. ले 10 साल ही था, आज हो गया. क्या करेगा? एक साथ पूरा एसेट का तू पीएल में डेबिट मार देगा. बेसिकली होगा वही, यू राइट ऑफ द होल एसेट इन वन सिंगल गो. So when you determined it, the remaining life was zero. कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एडवांसमेंट है. AS 26 बना था इन व्हाट लाइक 80s. तभी का पैरामीटर्स, तभी का इंडस्ट्री, तभी का बिजनेस, तभी का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वर एंटर्ड वाज क्वाइट डिफरेंट कंपेयर्ड टू टुडेज टाइम. So now they have gone one step ahead based on today's way of doing the business. So वो evolvement होएगा. See, accounts and FR is dynamic. It is never going to remain constant apart from 3 golden principles. तो वो तो business change होता है. तो मतलब see, it's like law कभी सेम रहता है क्या? law में amendment आता रहता है. अमेंडमेंट आया तो लूप होल ढूंढेगा, फिर उसका तोड़ निकालेगा लोग, तो फिर उसको कवर करने के लिए वापस लो. तो ये भी ऐसा ही है. लीज क्यों बना था? फालतूगिरी कर रहे थे तो लीज का स्टैंडर्ड डाल दिया, तो उसमें से लूप होल ढूंढा, तो फिर Ind AS 116 डाल दिया. कीप ऑन इवॉल्विंग. सो इट्स नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन, रॉन्ग वर्ड. डिफरेंस है नहीं है. तो क्या लाइक if you are the entity to whom AS is applicable, you will have to follow AS. If you are an entity to whom Ind AS is applicable, अब तक हम लोग वो गए नहीं है, पढ़ा नहीं हम लोगों ने. If you are a big company, certain turnover के ऊपर है तुम्हारा, certain assets के वर्थ के ऊपर है, 500 crores के ऊपर रहेगा, then to you Ind AS is applicable. Then you don't have a choice. You will have to follow Ind AS. Certain level के नीचे तो AS है. And slowly you cannot have two set of accounts या standards. Slowly AS will be same as Ind AS. जैसे Ind AS 10 हो, Ind AS नहीं, AS 10 is ditto same as Ind AS 16. पूरे का पूरा 16 से छाप लिया. To an extent that certain parameters जो एक्चुअली खाली Ind AS के स्टैंडर्ड्स में होना चाहिए वो भी डाल दिया. डिस्काउंटिंग, decommissioning liability should be measured present value. अभी AS 29 के थ्रू जाओगे तो none of the provisions are discounted. Everything is at nominal value, not at present value. बराबर है. AS 10 में जब अमेंडमेंट लाया, जब 16 से छापा इन लोगों ने, Ind AS में जितना भी प्रोविजंस बियॉन्ड 1 ईयर है सबका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन होता है. तो उन लोगों ने छाप लिया. चलो हाँ, AS 29 तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं करने को बोलता है, और ये एक प्रोविजन जो AS 10 में आ गया वो प्रेजेंट वैल्यू पे होता है. ना ये इसका एक्सेप्शन है. तो स्लोली इट विल कम. दे विल बी एट ऑलमोस्ट द सेम लेंथ. तो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस रहेगा, बाकी सब सेम हो जाएगा. लेकिन are going in a wrong direction.
डिफरेंस है तो उसका भी रीजन है, सर्टन एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम डिफरेंस का भी रीजन होता है, ओनली वी नीड टू टेक सम एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, जैसे ये 10 साल था, इट वॉज अ assumption था based on the factors available at that point of time done by the authorities, not it was not in India, it was global, IFRS का था ये सब, ये IAS का, धीरे धीरे सब डेवलप होता रहता है, that is not an issue, but then अगर amortization नहीं है, if life is not determinable, तो the asset is subject to annual impairment testing. Intangible assets with indefinite life. What? Indefinite life, जिसका life determinable नहीं है, they are not subject to amortization. If they are not subject to amortization, as you said, इसका real value books में दिखेगी नहीं, उसका बेनिफिट तो मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है और उसका वैल्यू कम नहीं हो रहा है वहां पे, बराबर है। तो फिर क्या करने का, तो ये बोलता है कि ठीक है, वो एमोर्टाइजेशन नहीं है ना, एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो, एवरी ईयर यू टेस्ट इट फॉर इंपेयरमेंट। तो बेसिकली इफ यू डू दैट, योर इंपेयरमेंट विल कवर अप द एमोर्टाइजेशन ना। अगर वैल्यू कम हुआ है तो हो जाएगा, कुछ नहीं तो कम से कम एफई माइनस सीटीएस तो गिरेगा ही गिरेगा। मैं गाड़ी खरीदता है, मैं उसको डेप्रिशिएट नहीं करता है, 1 साल के बाद उसको बेच से निकालेगा, भाव तो कम हो जाएगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों भाव क्यों कम होगा? वैल्यू इन यूज एक्चुअली कम हो गया है, बेनिफिट कम हो गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो वॉट एवर इंटेंजिबल एसेट इज देयर जिसका लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एमोर्टाइजेशन एज पर 38। एंड टू काउंटर दैट इंड एस 36 सेज इसका लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है, एमोर्टाइजेबल नहीं है, तो एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो। That will take care or that will make sure that the asset is not shown at a value more than its recoverable amount. Are you getting it? Understood why it is subject to annual impairment testing? फिर इसमें ऑप्शन नहीं है, इंडिकेटर के लिए वेट मत करो, एवरी ईयर करना पड़ेगा। और अगर बीच में कोई साल के बीच में कोई इंडिकेटर ट्रिगर हो गया तो तभी भी करो, you have to do it, you don't have a choice. Are you getting? Of what value? Value of what? Asset. How is value of asset relevant out over here? तो वो डर से तो करेगा नहीं। वही पूछ रहा था। That's what I am counter asking you. How is value of that asset or the value of the loss or the amount of loss is relevant? Whether to should I do the testing or not? ऐसा है क्या? कोई टेस्ट बहुत महंगा है तो मैं नहीं करेगा। अरे लेकिन ये सबके लिए थोड़ी रहेगा फिर। जब तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग इंडिकेटर बेस करता है तो भी सबके लिए नहीं करता है, खाली जिसका इंडिकेटर है उसी का करता है। देखो बुखार आ रहा है तो डॉक्टर बोलेगा भाई तू मलेरिया का कर ले, डेंगू का कर ले, बरोबर है। थोड़ी देर को बाकी कोई फालतू का टेस्ट लिख के देगा कि चल अभी आया है तो हड्डी का भी कर ले। अरे क्यों? डज इट मेक अ सेंस? तो सबका नहीं करने का, इंडिकेटर हो के इंडिकेटर नो, जिसके तरफ लग रहा है कि भाई इसका वैल्यू कम रहेगा उसी का है इंडिकेटर, जिस असेट करेगा वो, और जिस इंटेंजिबल एसेट का लाइफ डिटरमाइनेबल है सिर्फ उसी का है और किसी का नहीं। अभी उसके बाद मेरे पास कितना भी एसेट होने दे, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या लॉजिक क्या था इसका? तो तेरे हिसाब से तेरा गाड़ी का अगर रेयर व्यू टूट जाता है तो तू पूरा गाड़ी चेंज करेगा, सब चेंज करता है, इंटीरियर सीट कवर भी चेंज करो, मैच होना चाहिए नए रेयर व्यू के साथ, नहीं बराबर ना? So if there is an intangible asset whose life is not determinable, they are subject to annual impairment testing. Are you getting it? अच्छा, दूसरा exception, again going back to 38. 38 में there is a concept which was there in AS 26 also as of intangible asset under development. अगर आप कोई सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट बना रहे हो तो वो 2 फेज से निकलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च फेज में जो भी खर्चा होता है वो एक्सपेंस आउट हो जाता है, डेवलपमेंट फेज में जो खर्चा होता है वो रॉन्ग, वो भी एक्सपेंस होता है। Unless the 6 or 7 conditions which I mentioned, all of them are met, तब जाके कैपिटलाइजेशन शुरू होता है, तब तक शुरू होता नहीं है। तो ऐसा रटने का नहीं, तभी भी वॉर्न किया था कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेंस आउट डिफॉल्ट ट्रीटमेंट, ओनली इफ कैपिटलाइजेबल है तो कैपिटलाइज होएगा। अभी समझो कोई डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, चालू कर दिया कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन चालू किया तो कहना है पास द एंट्री एज इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, नो, क्योंकि इंटेंजिबल असेट अब तक बना थोड़ी है, अंडर
डेवलपमेंट है, तो बैलेंस शीट में उसका एक अलग हेड है, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, कैपिटल WIP के जैसा। यस सर। अच्छा, ये असेट तैयार कब होएगा? जब होगा सब होगा। जब तैयार होएगा तभी क्या एंट्री पास करेंगे? इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, कॉन्ट्रा एंट्री पास करके निकाल लेंगे। समझ में आ रहा क्या बड़बड़ा रहा हूं? जब काम चल रहा है, कोई एसेट बन रहा है, तभी हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट डेबिट टू कैश बैंक। असेट तैयार हो जाएगा तभी इंटेंजिबल असेट अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। तो बेसिकली नेट नेट इफेक्ट क्या आएगा? असेट टू कैश बैंक, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट है वो टेम्पररी अकाउंट है, जब तक असेट तैयार होता नहीं है। अरे यस और नो? फिर समझो हमने ये एंट्री पास किया है, असेट इज अंडर डेवलपमेंट फेज। ये एमोर्टाइज होएगा कि नहीं? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं? तो वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम। ये सब चीज 38 में वापस आएगा, तभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर फट करके निकलेगा। इज इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट सब्जेक्ट टू एमोर्टाइजेशन? यस वाई, नो वाई, एंड इफ यस हाउ, वो भी बोलना पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? किसने बोला? कहां पे लिखा है? मैं असेट बनने के बाद यूज भी नहीं कर रहा है तो बेनिफिट नहीं है, फिर भी एमोर्टाइजेशन शुरू हो जाता है। इफ आई डोंट इवन पुट टू यूज, देन आई चार्ज एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन फॉर दैट मैटर। Not yet made. Go to an interview for a job, and if they ask you this, what will be your answer? कब determine है? Okay. सेम थिंग, जो ऊपर वाला पॉइंट था वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट है, कितना साल बेनिफिट मिलेगा मालूम है क्या? कैसे मालूम पड़ेगा? अब तक बनने तो दे। बना नहीं है तो तेरे को लाइफ कैसे पता चल गया? फॉरगेट अबाउट लाइफ, कितना बेनिफिट मिलेगा वो भी नहीं मालूम। अरे यस और नो? बेनिफिट मिलेगा कि नहीं वो भी एक्चुअली नहीं मालूम, कभी भी यू टर्न हो सकता है। बना रहा है मस्त इंटेंजिबल एसेट, बाद में अचानक पता चला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया, या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला कि अच्छा ये तो फालतू की रही है, तो हो ही नहीं सकता है। दैट यू रियलाइज ओनली आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग इट? हाँ तो कुछ नहीं, पोपट अब तक जितना एसेट बनाया था पीएल में डेबिट मार के खत्म कर, सब एक्सपेंस आउट कर दे। क्यों? लग रहा था बेनिफिट है, अभी नहीं मिल रहा है। So, but for us, the most important part is life is not determinable yet because the asset is not yet ready. तो अगर लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है तो ये इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट जो है वो एमोर्टाइजेबल नहीं है। एमोर्टाइजेबल नहीं है तो रियल वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रहा नहीं है, तो इसको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? एनुअल इंपेयरमेंट। बोला हर साल इसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो, अगर किसी साल में इसका रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, इंपेयर करो इसको। That will take care of the fact, or they will take care of the principle which says that asset should not be carried at a value which is more than its recoverable amount. कोई भी asset जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो उसके खुद के रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा वैल्यू पे दिखना चाहिए नहीं। To ensure that we have depreciation, there is impairment loss over and above depreciation. If there is no depreciation, then annual impairment is there. That will take care of everything. Are you understanding this? Yes or no? गोल एक ही है, asset should not be at more than recoverable amount. समझ में आ रहा है? Sure. The third exception. Ind AS 103, AS 14. AS 14 के हिसाब से अमालगमेशन में गुडविल जनरेट होता है। Okay, we are not getting into the argument of what is goodwill, because new student don't know what is goodwill. So forget about what is goodwill, but goodwill होता है, yes, it's an intangible asset. As per AS 14, ये intangible asset जो है goodwill, उसको कितने साल में amortize करने का? What is the estimated useful life of a goodwill generated under the process of AS 14? ये जनरली पता नहीं था, बिकॉज ये सम्स के फॉर्म में आता ही नहीं है कभी, जस्ट एक इंफॉर्मेशन रह जाता है एज ए इंफॉर्मेशन, कभी समझ में नहीं आता है। बिकॉज हम लोग अमालगमेशन का सम करते हैं तो भी खाली डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे एंट्री पास करके बंद हो जाता है, उसके आगे थोड़ी जाता है, आगे भी जाते ही नहीं हम लोग।
तो बोलो अगर आता है तो किसी, एनीवन? नहीं, मैक्सिमम 5 years, मैक्सिमम 5 years। तो यहाँ पे मतलब इफ यू लुक एट इट देयर इज अ डिविएशन फ्रॉम द बेसिक रूल। AS26 क्या बोलता है, जिसका लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है उसको मैक्सिमम 10 साल में राइट ऑफ करो। तो वहां पे AS14 बोलता है कि अगर मेरे प्रोसेस में गुडविल जनरेट होता है तो उसका भी लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है, लेकिन उसको मैक्सिमम 5 साल में राइट ऑफ करो। There are two different treatments for two different type of intangible asset generated out of two different standards। समझ में आ रहा है? 26 कुछ और बोलता है और गुडविल के रिलेटेड AS14 कुछ और बोलता है। AS14 बोलता है अमालगमेशन का जो गुडविल है उसका लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है, इसलिए मैक्सिमम 5 साल में राइट ऑफ करो। फिर आया इंडेस 103। इंडेस 103 बोलता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन या अमालगमेशन में जो गुडविल आता है उसका लाइफ डिटरमाइनेबल है क्या? बोला नहीं है। हाँ, तो ये एमोटाइज ही नहीं होगा। सेम लॉजिक 38 का अप्लाई किया उसने कि लाइफ जब पता नहीं है तो एमोटाइज करेगा कैसे? बोला तो फिर इसका रिकवरेबल अमाउंट पे एसेट है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? बोला ठीक है, डू एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग। डू व्हाट? एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग। तीनों केसेस में लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है। कौन सा तीनों केसेस? नंबर 1, इंटेंजिबल असेट हुज लाइफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दूसरा, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट फेज। एंड तीसरा, गुडविल जनरेटेड बिजनेस कॉम्बिनेशन। तीनों का लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है। लाइफ डिटरमाइनेबल नहीं है इसलिए वो लोग एमोटाइजेबल नहीं है। एमोटाइजेबल नहीं है तो उसका जुगाड़ क्या निकाला? एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो, हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर दे रहो। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? श्योर? पक्का? एंड व्हाई दैट काइंड ऑफ लॉजिक? बिकॉज अगर एमोटाइजेबल नहीं है तो असेट अपने करेक्ट वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा वैल्यू पे दिख सकता नहीं है। To ensure that you go for annual impairment testing. Don't wait for indicators. Do it every time, every year. Are you getting this? Sure. Can we proceed? Pakku ekdam. Going back. FE minus CTS या value in use, whichever is higher becomes your recoverable amount. So let's get into. हाँ बोलो. Financial instruments. Index 109. इन्वेस्टमेंट उधर चला गया। चलो, लेट्स स्टार्ट विद FE माइनस CTS माइनस व्हाट इज CTS? कॉस्ट टू सेल। ओके, फेयर वैल्यू छोड़ो, क्यों? इंडेस 113 जब करेंगे तब उसका डिटेल पता चलेगा। उसके ऊपर अगर एक पूरा स्टैंडर्ड है तो 2 मिनट में ऐसे भी क्या समझ लोगे? पूरा स्टैंडर्ड है, उसका अपना पैरामीटर्स है, वैल्यूएशन टेक्निक्स है, बहुत कुछ है उसमें। बट एज ऑफ नाउ अपने लिए मार्केट वैल्यू समझ के चलो। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग बट स्टिल काम चलेगा। आर यू गेटिंग इट? what do you mean by CTS? How do you define what is cost to sell? And if you understand, एक चीज खाली ध्यान में रखो, आगे काम आएगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल किया ना, तो फेयर वैल्यू डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट टू सेल, इसलिए अलग से माइनस हो रहा है। Keep this in mind. When you say fair value and fair value less cost to sell, they both are different. Fair value is purely, say for example, market price. ये है market price minus cost to sell. Difference है. Are you getting it? So cost to sell does not form a part of calculation of fair value. फिर उसका भी exceptions है जो 113 में आएगा। बट याद रखो, fair value अलग और FE minus CTS अलग। CTS does not form a part of fair value, इसलिए अलग से माइनस करना पड़ रहा है। यस, चलो, क्या मतलब what do you mean by CTS? How would you define it? No examples. Just put in your own words. CTS किसको बोलेंगे आप? That is nothing but a more elaboration of cost to sell jargon. That's it. That's not a definition. You're just elaborating the thing. 3 शब्द में से एक सेंटेंस बना दिया। ग्रामर क्लास। राइट एन एसे और सी। ट्राई टू पुट इन योर ओन वर्ड्स। इसने ट्रांसलेशन किया। तो वो ऐड किया तूने? वो मैन, मैं भी वो लाया नहीं है। आ रहा है, जॉन विक 4 आ रहा है। चलो, एनीवन, हाउ वी पुट इन वर्ड्स? चलो एग्जांपल ही दे दो। देखो, फिर एग्जांपल से डेफिनेशन बन सकता है क्या? उल्टा गंगा बहा सकते हो।
What are the examples? Cost to sell में कैरेज, वो गुड्स में होता है. ट्रांसपोर्टेशन बोल, फिक्स्ड एसेट्स चल रहा है यहाँ पे. असेट बेचना है, ऐड करेंगे हम लोग पहले. पता चला एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ गया. हो सकता है, लाइक वो पेपर में ऐड दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. पेपर में ऐड छोटा मोटा ठीक है. होर्डिंग तो लगाओगे नहीं, मेरे को एसेट बेचना है मेरे को. हाँ, any kind of brokerage, any kind of commission paid, agreed. Transportation cost agreed. हाँ हो, ट्रांसपोर्टेशन बोला तो लोडिंग अनलोडिंग आएगा. गुड गुड, वेरी. तो हाउ डू यू पुट इन वर्ड्स, व्हाट आर दीज? कॉस्ट टू सेल को कैसे डिफाइन करोगे? टू सेल, that's a synonym that you're using for cost to sell. I can also direct expenses to expenses that wouldn't have been incurred if this asset is not going to be sold or wouldn't have been sold. This is basically a different terminology used for direct expense. Say for example, जैसे एग्जाम्पल तुम लोग ने बोला कि एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, ये वो. अगर असेट नहीं बेचते तो खर्चा होता क्या है? ऐसा खर्चा जो करना पड़ेगा क्योंकि असेट बेच रहे हो, ऐसा खर्चा जो नहीं करना पड़ता अगर असेट नहीं बेचते. दैट्स बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस का वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. तो डायरेक्ट एक्सपेंस टू सेल बेसिकली, बट द डेफिनेशन सेज दैट द एक्सपेंसेस दैट वुडंट हैव बीन इनकर्ड इफ द असेट वुडंट हैव बीन सोल्ड और इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड. आर यू गेटिंग इट? बराबर है. ब्रोकरेज कमीशन थोड़ी पे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी करते हैं, टैक्सेस थोड़ी भरते हैं, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी पे करते हैं. You wouldn't have incurred all those expenses. तो ऐसा सब एक्सपेंसेस जो उसको बेचने के चक्कर में कंपलसरी करना पड़ेगा, लेकिन बेचने गए तो ही करना पड़ेगा, इज बेसिकली कॉस्ट टू सेल. श्योर, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, दैट्स ओके. बट माय मेजर प्रॉब्लम इज वैल्यू इन यूज. वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट होता है? How do you calculate value in use? VIU is equal to present value of cash inflow minus present value of cash outflow. Agreed? सवाल उठता है दो चीज. प्रेजेंट वैल्यू में कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने का, तो सबसे एंड में देखेंगे. और दूसरा, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो में क्या क्या इंक्लूड होएगा और क्या क्या एक्सक्लूड होएगा. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ द टेक्निकलिटीज विल स्टार्ट किकिंग इन. एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा अभी. तो चलो कॉमन सेंसिकली, कैश इनफ्लोज में क्या आएगा, कैश आउटफ्लोज में क्या आएगा? कॉमन सेंसिकली सोचने का, अपने पास एक असेट है, गाड़ी है, बंगला है, सब है. थिंक यू हैव अ मशीन. तो हाउ, व्हाट विल बी द कैश इनफ्लोज? यूज करके जो गुड्स बना, गुड्स बन के जो बेच के पैसा मिला, सेल्स और द रेवेन्यू. बरोबर है. फिर कैश आउटफ्लो में क्या आएगा? प्रोक्योरमेंट, एनी कैश आउटफ्लो रिक्वायर्ड टू जनरेट द इनफ्लो. आ गया सब उसके अंदर. ब्रॉड टर्म सब आ गया. मेंटेनेंस, परचेज कॉस्ट, ओवरहेड्स, फलाना ढिकना जो इसको बनाने के चक्कर में हुआ है, सब आ जाएगा. जनरल ओवरहेड्स नहीं है. ऑफिस वाले को सैलरी दे रहा है तो उसका मशीन से प्रोडक्शन निकलेगा, उससे क्या लेना देना है? कल उठ गया वो नहीं रहेगा तो भी ये तो चलता रहेगा. बराबर है. सो एनीथिंग दैट इज डायरेक्टली अलोकेबल टू दिस और डायरेक्टली रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ कैश इनफ्लो विल बी सब्ट्रैक्टेड एज अ कैश आउटफ्लो. एक्सेप्ट और एक चीज ऐड होएगा. ऐड amount expected to be received from ultimate disposal of asset. That is nothing but residual value. No. आप बोलो, आपने AS19 किया है ना, लीज अकाउंटिंग. याद नहीं है, लोगों ने भी किया, इनको भी याद नहीं है. लीज अकाउंटिंग में एक स्पेसिफिक टर्म पे हम लोगों ने करीबन 10-15 मिनट ऐसा टेस्ट किया था. मैंने इन्वेस्ट किया, तुमने वेस्ट किया. कौन से टाइप का दो लाइफ होता है असेट का? थैंक्स बोल, जिसका आंसर तूने सुना. तूने पहले एस्टिमेटेड और यूजफुल बोला.
और बाद में चेंज करके इसको क्या किया, इकोनॉमिक एंड यूजफुल. व्हाट इज इकोनॉमिक लाइफ? स्क्रैप वैल्यूज एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, वेयर इज द रेसिडुअल वैल्यूज एट द एंड ऑफ माय यूजफुल. होता है, but residual value is a better term. Okay, residual value after using the asset, if you go to sell it in the market, whatever amount is expected, that forms a part of VI. यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करने का, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है. ये आज बेच दिया तो कितना पैसा मिलेगा, और ये यूज करने के बाद एंड में बेचा तो कितना पैसा मिलेगा, वो वैल्यू यूज का पार्ट बनेगा. इट्स कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम द यूज एंड इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल. अल्टीमेट डिस्पोजल यूज करने के बाद का वैल्यू. जबकि ये क्या है, ये क्या है, आज बेचा तो कितना पैसा, बोलो. या बट इट्स कंडीशनल. कंडीशनल जरूरी नहीं कि सेम होगा, जरूरी भी. इफ इट्स अ लॉन्ग टर्म कस्टमाइज असेट, प्रोबेबली इट विल बी द सेम. आपने अपने लिए असेट बनवाया है, का मार्केट ही नहीं है, so it has to remain the same. But then every time if I use scrap value, it will go wrong in a situation where the useful life and economic life are not the same. So it's better to use the terminology like residual value, which will replace even scrap value at the end of the useful life. But scrap value cannot replace the residual value when the useful life is shorter than the economic life. So this is a better term always to be used. इसलिए तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला में स्टैंडर्ड में ऐसा क्यों नहीं लिखा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. उन लोगों ने आरवी क्यों यूज किया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में यूजफुल लाइफ बैठा हुआ है. नाउ एज यू सेड, यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ कैन बी सेम. they are still not using the word like economic life in the calculation of depreciation, because they know कि economic life can be anything and depreciation is for the entity specific. तो उसके लिए जो useful life है उसके हिसाब से डेप्री, उसके हिसाब से आरवी, उसका ओरिजिनल कॉस्ट. entity specific, economic life asset specific. Are you getting it? So that terms are very critically analyzed and used. अपने को लगता है सब सेम सेम नहीं है, बहुत डिफरेंस होता है. Are you getting it? That's how a good CA and a चालू CA का difference is. He knows the technicalities. Okay, now it up to you कितना याद रखोगे. Okay, ये difference basically report ये root होता है in 19 में फाइनेंस लीज का इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर आता है, इफ लीज टर्म कवर्स द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ नॉट यूजफुल लाइफ, तो वो फाइनेंस लीज माना जाता है. तो वहां पे अगर वो टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ कर दिया ना, यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, यू आर डेड. यू विल नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज अ फाइनेंस लीज और नॉट बेस्ड ऑन दैट इंडिकेटर. तो दैट इज वेरी क्रिटिकल. हम लोग ने सर डिस्कस किया तो बहुत पहले, वापस करेंगे 16 आएगा तब, 116 आएगा तब, सॉरी. बट एज ऑफ नाउ क्या मैं बोल रहा था, हाँ, तो फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट रिसीव्ड टू बी एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ द एसेट. ओके, तो इसमें मुझे क्या बोलना था, हाँ, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में देयर आर टू एक्सपेंसेस व्हिच आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय द स्टैंडर्ड इटसेल्फ. बोला नहीं, ये तो आ ही नहीं सकता है. नंबर 1, एनी फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड, मतलब तुमने लोन लिया, लोन लेने से बाद वो पैसे से असेट खरीदा, so you are going to pay in interest expense, yes or no? That interest expense is not considered to be a part of this cash outflow. यहां पे इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए. Though you have taken a loan specifically for that particular asset, इंटरेस्ट यहां पे नहीं आएगा. ये 16 में वो कैपिटलाइज होएगा कि नहीं, वो कवर होता है बस. VIU में डालने का कि नहीं, वो थोड़ी 16 में कवर करता है. यहां पे हम लोग इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कैसे करने का बात नहीं कर रहे. हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी XYZ अकाउंटिंग हो, कैश आउटफ्लो में कैलकुलेशंस में नहीं आएगा. ये क्या है, तो अडानी क्या करता था, डेट पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था. एसेट का वैल्यू जब निकाल रहे बेटा, तो वो निकाल रहे कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो करके, एंड दिस कैश आउटफ्लो इज वेरी मच स्पेसिफिक टू दिस एसेट. दैट्स एन आर्गुमेंट दैट आई विल पोस्ट. So why should be excluded? You are just giving me a background of that expense. You are not giving me a reason of why it should be excluded. So are you suggesting in the process of calculating the cash outflows, if there are any fixed expense, I should be excluded? You took the base of fixed expense, so I'll bring in all the fixed expense then. Then why only one specific interest is excluded? Understood my point? Then tell me, why are you incurring it? बिजनेस में अगर 10 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिलता रहेगा, तो बिजनेसमैन 10 रुपया खर्चेगा क्या? फॉरगेट अबाउट बिजनेसमैन.
टॉक पर्सनली, 10 रुपए का बेनिफिट नहीं है। विल यू इनकर एन एक्सपेंस? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोनेशंस। डोनेशन भी तुम लोग ये सोच के देते हो कि कुछ पुण्य मिलेगा, वहां पे भी भगवान का ट्रेड चलता रहता है। भगवान 10 रुपए दिया, अगर बेनिफिट नहीं रहेगा तो 10 रुपया भी खर्चा करोगे क्या? हाउ कैन यू से कि इंटरेस्ट जितना बड़ा एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, देयर इज नो बेनिफिट? उसका पैसा यूज कर रहा है, बोलता है इंटरेस्ट नहीं देगा, बेनिफिट नहीं है। मेरा पैसा तो यूज कर रहा है। तो आपके हिसाब से जो भी पीएनएल में आता है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, राइट? मतलब मेंटेनेंस नहीं आएगा, लेबर कॉस्ट, सैलरी वैलरी नहीं आएगा। अच्छा, ट्रेडिंग में जो आएगा वो आएगा क्या बेटा? ट्रेडिंग वाला एक्सपेंस आएगा? एग्रीड, बट ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जो आएगा वो आएगा क्या यहाँ पे? बरोबर, हाँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ट्रेडिंग अकाउंट होता नहीं है, सिर्फ वर्टिकल होता है स्टेटमेंट। सो देयर इज नो ट्रेडिंग अकाउंट इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सो एवरीथिंग इज इन पीएनएल, सो नथिंग शुड कम बेसिकली, राइट? I said direct, but every direct expense or income has its own base. In the sense, direct expense for generating cash inflow. It is direct in context of this. हम लोग जब परचेज करते हैं इन्वेंट्री को, तो जब डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, खरीदने के रिलेटेड जो डायरेक्ट है उसका बात चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में जब डायरेक्ट बोलते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिलेटेड जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसका बात चल रहा है। अभी जो डायरेक्ट एक्सपेंस का बात हो रहा है सीटीएस जैसा है, तो सीटीएस इज a direct expense in context of sale of that asset. If I go to sell the asset today, context में, तो every direct expense has its context. तो वहां पे जब कैश आउटफ्लो है तो उसको डायरेक्ट कौन सा कैश आउटफ्लो इन रिलेशन टू जनरेटिंग दैट कैश इनफ्लो, वही डायरेक्ट चेंज है। अभी वो ट्रेडिंग में आता हो, पीएनएल में आता हो, या कहीं पे भी नहीं आता हो, लेकिन अगर खर्चा हुआ है इसके रिलेटेड तो आएगा। बेसिकली यू आर सेइंग द सेम थिंग, योर फाइनेंस एक्सपेंस। लॉजिक बीइंग अलग अलग लॉजिक्स है, यू कैन लुक एट इट द सेम थिंग इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। One, what you people said, saying that the interest is nowhere related to generation of the inflow. We need cash outflows which are required to generate the cash inflows, whereas interest is nowhere related to generation of the cash inflow. मैंने लोन लिया, बराबर, असेट यूज ही नहीं, मतलब असेट बना दिया लेकिन असेट यूज नहीं किया, तो कैश इनफ्लो आएगा ही नहीं, लेकिन इंटरेस्ट तो पे होता रहेगा, फिक्स्ड इन नेचर। टेक दैट बेस ऑल्सो कि फिक्स्ड है, इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं। We need cash outflow which are required to generate the cash inflows, तभी जाके उसका वैल्यू न्यूज मिलेगा। जैसे हम लोग कार का एग्जांपल लेते हैं, फिर कार का एग्जांपल लिया, अभी कार लोन पे था, इंटरेस्ट पे कर रहा है, अभी यूज करके मत कर, तेरे को इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा बिकॉज फिक्स्ड नेचर है, बिकॉज इनकम जनरेट नहीं होएगा तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फाइनेंस चार्ज है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू द सेम अंडरस्टैंडिंग कि फिक्स्ड है, व्हाट शी सेड। If you still think a bit further, which I thought you will go in that direction, but you didn't go in that direction, is that how is that interest expense related to my decision making of whether should I sell the asset today or use the asset? How is that interest expense or finance charge related to determining the way in which I will derive the benefit? मैं बेचू या यूज करूं किस पे डिपेंड करेगा, कहां से मुझे रोकड़ा पैसा ज्यादा आ रहा है। दोनों केसेस में इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा मुझे। तो फॉर डिसीजन मेकिंग, इफ यू रिमेंबर योर एफएम, दैट फिक्स्ड एक्सपेंस जिसका हम लोग बात करें, जैसे इंटरेस्ट का बात करें, इट इज इररिलेवेंट फॉर माय डिसीजन मेकिंग। अभी तू बेच के पैसा ले ले या यूज करके पैसा ले ले, दोनों केसेस में इंटरेस्ट होते जो फिर भी पे करना है, इट्स अ कॉमन फैक्टर इन बोथ ऑफ देम। देन व्हाई आर यू कंसीडरिंग दैट फॉर डिसीजन मेकिंग? कैपिटल बजटिंग था ना तुम लोगों को, कैपिटल बजटिंग इंटर में आता है ना डिसीजन मेकिंग। So that makes it irrelevant for my decision making. This is one way to look at it. Second way is क्या बोल सकते हैं इसको कि भाई, if you start considering the interest, okay, will this values of asset or the impairment loss that is been calculated by different entities be comparable at all? No, it won't be. जिसने लोन लेके asset नहीं खरीदा है और जिसने लोन लेके asset खरीदा है, major difference will be then interest. तो उनका वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेशन, मेथोडोलॉजी, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। सो कंपेरेबिलिटी विल बी गॉन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हिच इज वन ऑफ द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ एफएस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफएस। बोला नहीं तो इंटरेस्ट कोई मत लो, सब लोग खाली वही एक्सपेंस लो जो ये असेट यूज करने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए तुम लोग इनकर कर रहे हो।
अभी यहां पे तुम्हारा एफिशिएंसी प्ले में आ जाएगा कि भाई मैं कम कैश आउटफ्लो में उतना कैश इनफ्लो जनरेट कर रहा है, कोई ज्यादा कैश आउटफ्लो में कैश इनफ्लो जनरेट कर रहा है, तो वो उसका प्रॉब्लम है, फिर वो एंटिटी स्पेसिफिक हो गया। लेकिन इफ आई हैव टू ब्रिंग एवरीवन एट सेम लेवल, इंटरेस्ट को हटाओ, कंपैरिजन में से हटाओ, या बोलो कि डिसीजन मेकिंग में इररिलेवेंट है, फिक्स एक्सपेंसेस ले इररिलेवेंट है, नॉट एक्चुअली इनकर्ड फॉर जनरेटिंग कैश इनफ्लो। ईदर वे द वे यू लुक एट इट, इंटरेस्ट इज गेटिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल द एंगल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इंटरेस्ट को हटा दिया, फाइनेंस कॉस्ट को हटा दिया बेसिकली। दूसरा टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस भी निकालो, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड सीआई माइनस सीओ प्रॉफिट पे टारगेट है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, तो बचा वो तेरा प्रॉफिट ही है ना। दे आर एक्चुअली आस्किंग यू टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट एसेट। टारगेट इज प्रॉफिट, तो टैक्स नहीं आना चाहिए इसमें। इट्स इम्प्लाइड कि प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट का बात हो रहा है, तो सामने टैक्स भी आएगा, टैक्स नहीं आना चाहिए। इग्नोर टैक्सेशन। Why? This is much more simpler compared to interest. It's evident. It's on the face. It's tax. but टैक्स जो पे करते हो ना, प्रॉफिट कमाने के बाद प्रॉफिट के ऊपर पे करते हो। मेरा टारगेट ये नहीं है कि टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा, मैं प्रॉफिट कितना कमाएगा वो बता। आई वॉन्ट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट, नॉट द बेनिफिट दैट रिमेन्स आफ्टर पेइंग द टैक्स। शादी करने के बाद अगर उसको लड़की पूछते कितना कमाता है, तो आफ्टर टैक्स बोलेगा बिफोर टैक्स बोलेगा? बिफोर टैक्स। कमाता तो उतना ही है, बाद में उसका एक पार्ट किसी और को दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन कमाया तो पूरा ही ना। सेम लॉजिक अप्लाई कर यहां पे। असेट यूज करके कैश इनफ्लो जनरेट किया, कैश इनफ्लो जनरेट करने में जो खर्चा हुआ वो माइनस करने को बोला है। टैक्स इज नॉट इनकर्ड टू जनरेट द कैश इनफ्लोज। टैक्स विल बी पेड और वॉट एवर रिमेन्स विथ मी आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस। हाउ इज दैट इनकर्ड टू जनरेट द इनफ्लो? अगर इंटरेस्ट जैसा एक्सपेंस इनफ्लो के लिए नहीं है तो टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉमन सेंस। अरे यस और नो? हम लोग ने बोला वो इंटरेस्ट कॉस्ट जो तुमने स्पेसिफिकली ये एसेट के लिए इनकर किया ना, वो भी इसका कैश इनफ्लो के लिए नहीं है, हटाओ उसको। बराबर है? कल उठ के तुमने इनफ्लो जनरेट नहीं किया तो भी इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाट द लॉजिक यूज। तो टैक्स किस हिसाब से लिंक करोगे? वो कहां से इनकम के लिए कैश इनफ्लो के लिए एक्सपेंस हुआ है? ऐसे टैक्स पे करोगे तो ही कैश इनफ्लो होगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे नेट प्रॉफिट बचा तो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। So it's something over and above the income. It's on net profit, and we are not targeting what is net profit after tax. We just need net profit कितना है वो बता, क्योंकि that represents the benefit of the asset. तो वो benefit से मैंने क्या किया वो मेरा लुकआउट है। That's why there is always a distinction between P&L and P&L appropriation. P&L represents कितना प्रॉफिट कमाया, appropriation represents कि उसका क्या किया तुमने। तो वही लॉजिक, नॉट एब्सोल्यूट सेंस में, बट उसका ही थोड़ा सा लॉजिक अगर लेके यहां पे अप्लाई करोगे तो मिलेगा। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए प्रॉफिट बता। फिर प्रॉफिट में से कुछ टैक्स भरना पड़ा वो ठीक है, वो सबको ही भरना पड़ेगा, और अलग अलग एंटिटी का अलग अलग स्लैब में भी जा सकता है, तो वापस कंपेरेबिलिटी भी चला जाएगा। एंड वी आर नॉट टारगेटिंग व्हाट रिमेन्स आफ्टर पेइंग टैक्स, वी नीड व्हाट इज एक्चुअल बेनिफिट। आर यू गेटिंग इट? बरोबर है? वैसे तो जो करंट कैरिंग अमाउंट है उसको भी यूज करके बेनिफिट निकालोगे तो भी टैक्स भरना पड़ेगा, बेच दोगे और प्रॉफिट आएगा तो भी टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स तो ऐसे भी वापस कॉमन फैक्टर है सब में, तो वो भी डिसीजन मेकिंग के लिए सॉर्ट ऑफ इररिलेवेंट हो गया तुम्हारे लिए। बेच के भी पैसा आया तो टैक्स तो भरना पड़ेगा ना प्रॉफिट्स के ऊपर, यूज करके जो प्रॉफिट आएगा उसमें भी टैक्स भरना पड़ेगा। अगेन इट्स कॉमन फैक्टर, अगेन इट बिकम्स रिलेवेंट फॉर माई डिसीजन मेकिंग। मैं थोड़ी सोचेगा नहीं तो बेचेंगे तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बट टैक्स तो फिर भी भरना पड़ेगा। अरे गेटिंग इट? नाउ डोंट गेट इनटू द आर्गुमेंट सेइंग दैट सर बेच के कमाया अलग टैक्स रेट है, यूज करके कमाया ना तो अलग टैक्स रेट है। वो बेटा आज का लॉ है, कल चेंज होएगा, तेरे को खुद को नहीं पता। एंड IAS and Ind AS are not made based on per se only considering today's law. They will make what is right in accounting. Are you getting it? तो कल उठ के लॉ चेंज हो गया तो AS चेंज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। If they have that provisions in their standards, they are not going to change it. ऐसा बहुत एलिमेंट्स मिलेगा which are may not be applicable today as per the current law pattern, but they have provisions in the standard. Ind AS 12 income tax में तुमको दिखेगा certain things are not applicable in India based on today's income tax act, लेकिन they have the provisions ready. कल के लॉ चेंज होगा ये अप्लाई होगा, नहीं होगा तो ये अप्लाई होगा, they are ready for it. है एक दो पैरामीटर्स मिलेगा तुमको। तो दो एक्सपेंस में एक फाइनेंस चार्ज एक्सक्लूड है, दूसरा टैक्स एक्सपेंस एक्सक्लूड। यस सर, इनकम टैक्स शुड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर calculation.
I think good enough. We read some theory. ज़्यादा explanation एक साथ अपना CA का registration करवाना है अपने को final का. Objective to prescribe the procedure that an entity applies to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. The standard also specifies when an entity should reverse the impairment loss and prescribe the disclosures. We'll see that later on. An asset recognized in the books of accounts represents future economic benefit. Now, this is our explanation or understanding of things, of why this standard is required. Okay, so use it as much as you can in your writing of answers. Asset recognized in the books of accounts represents the future economic benefit expected out of it. Accordingly, they are to be measured as per the benefits that are embodied in the asset. Hence, any decrease in the amount of benefit expected out of the asset should be reflected in the books of accounts by decreasing the value of asset and thus giving more realistic picture to the readers of the financial statements. Therefore, if the recoverable amount of asset is less than the carrying amount of the asset, then any excess over and above the recoverable amount is written off as impairment loss. Scope. Standard is not applicable to the following: inventories and AS2, contract assets and assets arising from the cost obtained or fulfilling the contract that are recognized in accordance with India's 115, revenue from contracts with customer, financial asset that are written that are within the scope of India's 109, financial instruments, deferred tax asset India's 12, assets arising from the employee benefits 19, biological assets 41, deferred acquisition cost and intangible assets arising from an insurance contract, rights under the insurance contract within the scope of India's 104 insurance contract, जो अभी फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में नहीं आया अब तक, नए सिलेबस में आएगा तो आ जाना चाहिए इनफैक्ट. नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल 105. तो बेसिकली जिस असेट का खुद का स्टैंडर्ड है उसको ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है. अच्छा, खुद का स्टैंडर्ड है प्लस उसमें इंपेयरमेंट भी कवर्ड है तो this standard applies to the financial assets classified as subsidiaries as defined in 110, associates 28, joint venture 111. We'll see that later on. So basically these are the investments. आप पूछ रहे थे ना investment, but investment in subsidiary, JV or associate covered है क्योंकि India's 110, 28 or 111 does not cover the impairment of these kind of investments. उसके अलावा अगर आपका इन्वेस्टमेंट्स है किसी और एंटिटी में विच इज नॉट अ सब्सिडरी, नॉट अ जेवी, नॉन एसोसिएट, तो वो 109 में कवर्ड है. एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो 40 में कवर्ड है. ओके, उसके लिए भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है. टाइमिंग. The asset is tested for impairment only if there are indicators that asset may be impaired. The indicators are as follows. External indicator में market value of asset has declined more than that was expected. Significant changes have taken place in technology, market conditions, economic environment, legal regulations, etc., and which has adverse effect on the entity. Market interest rates have increased and has an adverse effect on the entity. Ma'am, if you're not getting it, just look on the screen, it's there. The carrying amount of the net asset is more than the market capitalization. Now this is, let us say, company has 100 equity shares of rupees 10 each. So कितने का कैपिटल है? 1000. Assets है say 1200 और liabilities है 200. Is the balance sheet tallying? What is the net asset of this entity? Net asset, asset minus liability करेंगे तो net asset कितना है? 1000 रुपीज का net asset है. Yes. और ये जो 100 शेयर्स है इसका आप मार्केट वैल्यू अगर आप निकालते हो, समझो इसका मार्केट वैल्यू है 5 रुपया, तो 100 इंटू 5, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स कंबाइंड टुगेदर, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 500. जबकि नेट एसेट कितना है? 1000. यस, देन इट्स एन इंडिकेटर कि तुम्हारा जो बुक्स में एसेट का वैल्यू दिख रहा है ना, शायद वो रियलिस्टिक नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि इंपेयरमेंट ही है, नहीं, क्योंकि मार्केट प्राइस अगर देखा तो वो टेम्पररी फ्लक्चुएशंस भी हो सकता है, लेकिन तुमको लगता है कि ये टेम्पररी फ्लक्चुएशन नहीं है, काफी टाइम से 5 रुपए भी बैठा हुआ है, देन प्रोबेबली सर्टेन असेट्स ऑफ योर्स आर ओवर वैल्यूड. व्हाई? बिकॉज द असेट्स आर नॉट जनरेटिंग द बेनिफिट दैट दे वर सपोज्ड टू जनरेट. तो प्रोबेबली यू आर नॉट हैविंग प्रॉफिट्स. बिकॉज यू आर नॉट हैविंग प्रॉफिट्स, मार्केट में तेरा शेयर्स का वैल्यू गिरते जा रहा है.
there's a big chain, but then it's an indicator saying that कि भाई देख भाई कुछ तो गड़बड़ लग रहा है. Obviously look into only permanent decrease in the value of shares. Don't go for temporary. अभी 2 मिनट पहले 10 रुपया था 2 रुपया हो गया, अरे बाप रे अभी इम्पेयरमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है. 5 मिनट के बाद वो 100 रुपये पे रहेगा. स्टॉक मार्केट से वो. So if there's a permanent fall, then you have to check whether certain assets are impaired or no. Okay, so these are not compulsory impairments. They are just indicators. Don't stick to it very strongly. Internal indicators: observable obsolescence, physical damage, use of asset has significantly changed in extent and manner in which it was previously used. Internal indications that economic performance of the asset is or will be worse than expected. Example: continuous cash losses. Investor recognizes a dividend from the investment. This part we can just read it. पूरी तरह समझ में नहीं आएगा अभी. Investor recognizes a dividend from the investments, and evidence available indicates that investment in SFS, that is standalone financial statements, exceeds the carrying amount of the investee's net asset, including the goodwill in CFS. बहुत ज़्यादा टेक्निकल है. Dividend exceeds the total comprehensive income of subsidiary, that is JV or associate. Now we still don't know what is total comprehensive income. Part of P&L. वो कैसे आता है, क्या है, we will see that later on. So you can keep this tool for better understanding later on. Exceptions: any intangible asset with indefinite life. As per Ind AS 38, any intangible asset with indefinite life is not subject to amortization. Thus, the asset will be shown at its carrying amount and would not reflect the actual benefit to be received from it. Hence, to ensure that the asset are carried at carrying amount, at the carrying amount or recoverable amount, whichever is less, they are subject to annual impairment testing. Goodwill created in the process of business combination. As per Ind AS 103, goodwill created in the business combination is not subject to amortization, and hence it is subject to annual impairment testing. Any intangible asset not available for use, that is intangible asset under development, the true benefits of to be received cannot be accurately determined till it is ready for its intended use. Hence, to ensure that such assets are not disclosed at a value more than the recoverable amount, they are subject to annual impairment till they become ready for their intended use. Measurement: impairment loss is excess of carrying amount over its recoverable amount. That is, impairment loss is equal to carrying amount minus recoverable amount. Carrying amount is the amount of asset amount at which the assets are recognized after deducting accumulated debris and accumulated impairment loss. पर कौन सा लिखो, past bracket में, past impairment loss. Recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. Fair value is the price that would be received to sell an asset. मतलब आज अगर asset बेच दे तो कितना पैसा मिलेगा? Or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants as the measurable date. ये definition कहाँ से आ रहा है? 113 का definition है ये. Cost to sell are direct incremental cost. See, look at the language used. Direct what? ऐसा expense जो incremental है, मतलब incur हो रहा है because of particular thing is happening. नहीं होता तो ये increase भी नहीं होता. Hence the word uses incremental. They are incremental because of this transaction. This in the sense, in general सबका बात कर रहा हूँ. सब direct expense incremental cost के तरीके से देखना चाहिए. Incurred in bringing the asset in the sellable condition. Example: legal cost, professional fees, stamp duty or similar transaction taxes, cost of removing the asset. Please underline करो उसको. However, it excludes the termination benefit cost associated with reorganizing the business after the disposal of asset. टर्मिनेशन बेनिफिट, असेट बेच दिया, असेट को यूज कर रहे थे 4 एम्प्लॉइज, उनको निकालना पड़ेगा तो उनको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा. हाउ इज दैट एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ द एसेट? मैं एसेट बेच रहा हूं, इनको टर्मिनेट नहीं कर रहा हूं, या इनको टर्मिनेट कर रहा हूं लेकिन एसेट नहीं बेच रहा हूं, दोनों में कोई लिंक नहीं है. Are you getting it? So termination benefit because you are disposing of the asset is not related to selling of the asset. It is not a cost incurred to sell the asset. तो वो exclude है. Obviously reorganizing cost of the business, asset बेच दिया, फिर कुछ और business करेंगे, restructuring करेंगे, वो सब excluded है. That is nothing to do with the sale of asset.
तो ये तो ही बोल सकते हो मैंने घर बेच दिया और उसके बाद में भाड़े पर रहने चला गया, तो मैं जो भाड़ा पे कर रहा है that's a cost to sell the asset. Nonsense. Cost to sell the house will be only the brokerage and the stamp duty and the legal charges that you pay. What is your rent which is paid after you sold the asset to do with the sale of asset? Does not make any sense. Value in use is the present value of future cash flows expected to be derived from the use of asset and its ultimate disposal. Calculation of value in use is done using following steps. A. Estimate the future cash flows to be derived from the continuing use of the asset. Look at the language again. From which use? तो यूज करने से, कंटिन्यूसली यूज करने से जो बेनिफिट आएगा वही तुमको लेना है. एंड इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल, अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट टू दोस फ्यूचर कैश फ्लोज. Estimating the future cash flows. The basis of cash flow projection should represent the management's best estimate of the range of economic conditions that will exist. Let's say you have a machine. Yes. इसको ऑपरेट करने के लिए 2 एम्प्लॉइज लगता है and you are paying a salary to them. So now, in coming 2 years time, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स की इसके अंदर है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा. विल डू सम चेंजेस इन दिस मशीन, एंड इफ यू डू दैट चेंजेस यू विल रिक्वायर ओनली 1 वर्कर. देयर विल बी सेविंग. तो टेल मी ये 2 चीज, एक द एक्सपेंस, द कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विच विल बी डन आफ्टर 2 years, एंड वो एक्सपेंडिचर करने के बाद का जो सेविंग है, सेविंग इन कॉस्ट. Yes, sir. Should we take both of them in the calculation of value in use? Should we take any one of them and ignore another? Whatever, what is to be done with these 2 things? Consider, don't consider, individual levels pay with reasons. Take 2 minutes, think about it and answer. Think it thoroughly. Don't think it superficially. तुम्हारे दिमाग में जो आंसर आता है उसका रीजन ढूंढो कि अगर मेरे को ये बोलना है तो इसके पीछे क्या प्रोसेस था, क्योंकि मेरा खुद का ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाई. तो थिंक इट थ्रू एंड देन आंसर. बेटा वो कैश इनफ्लो है ना, उतना कैश आउटफ्लो नहीं होएगा. मेरा कैश आउटफ्लो रिड्यूस करेगा वो. रोकड़ा आ नहीं रहा है लेकिन आउटफ्लो कम तो हो जाएगा ना बेटा. इसका पगार नहीं देना पड़ेगा ना बेटा. क्यों नहीं, क्या लॉजिक, इसका पगार कम होगा ना. मेरे एग्जांपल में बोला ना इसको पगार नहीं देना पड़ेगा. एक ही बंदा बस है मशीन हैंडल करने के लिए. अरे उसका क्यों बढ़ेगा जब मैं, अरे आंटी मैंने असेट को चेंज किया ना, असेट में चेंजेस किया जिससे वो एक बंदे से हैंडल हो जाएगा. मशीन वैसा का वैसा नहीं है ना कि 2 जन का काम 1 जन कर रहा है. नहीं, मशीन ही चेंज कर रहा हूं, मशीन में चेंजेस कर रहा हूं. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये वजह से ये हो रहा है. इसको निकाल दिया, पैसा नहीं, इसको निकाल दो, रिसेशन, वो सब नहीं. ये किया इसलिए कॉस्ट सेविंग हो रहा है. कॉस्ट कटिंग करने का नहीं है अपने का, सेविंग हो रहा है. इज नेवर ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जस्ट अ मैटर ऑफ डिसीजन मेकिंग यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग और एफएम, नॉट इन पार्ट ऑफ एफआर और अकाउंट्स फॉर दैट मैटर. हैव यू एवर सीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बीइंग अकाउंटेड? वी आर नॉट डीलिंग विद द नेचर ऑफ एक्सपेंस. कैश आउटफ्लो तो है ना बेटा. एक बात बता, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, इज इट अ कैश फ्लो? देन शुड इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ माय कैश फ्लो कैलकुलेशंस? यस, इफ यू से सो. इट इज नॉट जस्ट एक्सक्लूडेड बिकॉज उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर. कल उठ के यही मशीन का या कोई भी एक असेट का तुमको एक पार्ट बदलना पड़ा कि मालूम है कि भाई ये पार्ट का लाइफ 2 साल 3 साल या उसके बाद रिप्लेस करना पड़ेगा. तो जब तुम लोग फ्यूचर कैश फ्लो चार्ट आउट कर रहे हो तो हर 2 साल के बाद वो पार्ट का कैश आउटफ्लो दिखाओगे ना आप लोग. समझा मैंने क्या बोला? नहीं समझा तेरे को? तूने गाड़ी खरीदा, तेरे को उसका फ्यूचर बेनिफिट में कितना रोकड़ा पैसा मिलेगा वो कैलकुलेट करने का. तेरे को मालूम है ना 4 साल के बाद टायर बदलना पड़ेगा. तो अगर तेरा लाइफ 15 साल का है तो हर 4 साल के बाद तेरे कैश आउटफ्लो में टायर का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? ये थोड़ी बोलेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टायर का कॉस्ट तो एसेट में ऐड कर देंगे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो ये मैं कैश फ्लो में नहीं लेगी. अरे कैश आउटफ्लो तो है ना. अकाउंटिंग वर्ल्ड में जो करना है कर. Debited to asset or debited to PL. Is there a cash outflow? Yes, then take it. I took an example, I'm saying. Cash outflow में तो consider करेगा. Just because capital नहीं आएगा ये wrong है. I hope I made myself very clear.
अगेन वी आर डीलिंग विद कैश फ्लोज. कैश फ्लो में कैश इनफ्लो तो आउटफ्लो तो बचेगा ही बचेगा. कंजर्वेटिज्म तेल बेचने गया. सिंपल है. ये अभी करना है कि फ्यूचरिस्टिक है? मतलब ये फ्यूचर में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है. हम लोग जब वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हैं तो वो असेट का प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका एफई माइनस सीटीएस बिना आज जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में बेचने गए तो कितना पैसा मिलेगा वो बता रहा है. प्लस कैरिंग अमाउंट जो है, जो तीसरा एलिमेंट है कंपैरिजन का, वो भी आज जिस कंडीशन में है ना उसी कंडीशन का कैरिंग अमाउंट है. कल उठ के कैपेक्स किया ना इनकर उसमें, तो कैरिंग अमाउंट भी बढ़ेगा, एफई माइनस सीटीएस भी बढ़ेगा, तो वैल्यू इन यूज बढ़ेगा. All the three elements, carrying amount, FE minus CTS and value in use should be based on the present condition of the asset. सिंपल बनिया बुद्धि क्यों है? क्यों कॉमन सेंस है? तुम लोग घर का एग्जाम्पल है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे सोसाइटी में ना पिछले 10 साल से रीडेवलपमेंट का सिर्फ बात ही चल रहा है. डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, काम तो चालू ना दूर की बात है. फिर कोई घर तुम्हारा देखने आता है, तुमको बेचना है तो तुम लोग उसको बोलोगे अरे रीडेवलपमेंट में जाने वाला है. तो बोलेगा ठीक है क्या बात, तो बता. बिल्डर के साथ एग्रीमेंट है? नहीं. बोला बस ऐसी बात है. तो डू यू थिंक यू कैन हाइक अप योर प्राइस ऑफ द फ्लैट बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ डिस्कशन? बुलशिट. वो फ्यूचरिस्टिक है, अब तक कुछ हुआ नहीं है. लेकिन समझो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है बिल्डर के साथ, प्रोसेस भी हो गया, बोला 2-3 महीने में डिमोलेशन चालू कर देगा. विल योर प्राइस बी इंक्रीज्ड? तो फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए इंक्लूड या एक्सक्लूड वो पैरामीटर नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर का. लेकिन एनी काइंड ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस टू विच एंटिटी इज कमिटेड. समझो यही एग्जाम्पल में बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो पार्ट्स लेने का था ना वो ले लिया है, खाली इंस्टॉल करने का बाकी है, देन आई विल कंसीडर इट बिकॉज देयर इज अ कमिटमेंट टू द फ्यूचर एक्सपेंस, देयर इज अ कमिटमेंट टू फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, देन इट शुड बी कंसिडर्ड. लेकिन ऐ भी खाली फ्यूचर में होने वाला ऐसा मैं बोल रहा है तो थोड़ी उसका आज का वैल्यू चेंज हो जाएगा या आज का कंडीशन चेंज हो जाएगा. So all the three elements of carrying amount, FE minus CTS as well as value in use should be based on the present condition of the asset, and hence any kind of future non-committed restructuring, capital expenditure, everything is excluded. Even the outcome or the impact of such kind of restructuring and capital expenditure should also be excluded. तो श्योर थोड़ी आज जब होगा तब देखेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल है ना. जैसे अगर मैं बोलता कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी चालू कर दिया है तो बुक वैल्यू बढ़ेगा, उसका फेयर वैल्यू बढ़ेगा, तो वैल्यू यूज बढ़ेगा. जब कुछ नहीं है तो तीनों में इंपैक्ट नहीं आना चाहिए. आर यू गेटिंग दिस? यस या नो? एस्टिमेटिंग कैश फ्लोज कुछ रीड किया था इसमें से. Basis of cash flow projection should represent management best estimate of the range of economic conditions that will exist over the remaining useful life of the asset. Cash flow should be based on management's recent budget or forecast approved by the management, but excludes any estimate of future cash inflows or outflows expected to arise from future restructuring to which entity is not committed. मतलब committed रहेगा तो आएगा, uncommitted रहेगा तो नहीं आएगा. Any savings in outflow that may arise from improving or enhancing the asset's performance. That is, the projection should be done based on the current condition of the asset. Projection based on the budget or forecast should cover a period of 5 years unless a longer period can be justified. 5 साल के बाद का किसी ने देखा नहीं है. जनरली हर एक एंटिटी जब फोरकास्टिंग या बजटिंग है तो मैक्सिमम 5 साल होता है. Does not make a sense. उसके आगे करने के लिए करोगे लेकिन वो बहुत आर्बिट्री होएगा. इट्स वेरी अनबिलीवेबल. इट इज नॉट दैट रिलायबल इन्फॉर्मेशन. वो खाली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज डाला है तुमने. आर गेटिंग इट? बट देन रिलायबिलिटी कम हो जाता है. सो मैक्स मतलब 5 years तक. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू गो फर्दर देयर हैज टू बी अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन. इन द सेंस तुमको मालूम है कि ये एसेट का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है 50 साल का, 50 साल तक एक्स अमाउंट तो रेवेन्यू जनरेट होएगा, तो ले ले फिर 50 साल तक. इन्फ्लेशन एडजस्ट कर ले, खर्चा जितना हो रहा है उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर ले, देन यू कैन डू इट. बट देन दैट काइंड ऑफ श्योरिटी एंड सर्टेनिटी शुड बी इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोजेक्शंस. देन यू मे कंसिडर इट or else better don't. However, the growth rate, now look at this. However, the growth rate shall not exceed the long-term average growth rate. Did I skip something? Yes. For wala point. The projections of the cash flow beyond a period of most recent budget or forecast, generally 5 years, should be based on the steady or negative growth rate unless an increasing growth rate can be justified.
क्या बोल रहा है? तुम लोग फोरकास्ट करने बैठे, तुमने बोला कि एवरी ईयर तुम्हारा जो रेवेन्यू है 5% से इंक्रीज होता है। यस, बोलता है ये जो इंक्रीजिंग रेट ले रहे हो ना, 5 years 5 years 5 years, सॉरी 5%, 5%, 5%, ये 5 साल के लिए। उसके बाद या तो 5% ही रखने का, या तो 5 से कम होएगा, इंक्रीज कर सकते नहीं हो। सिंपल इकोनॉमिक्स। तुम लोग 5% अगर कमा रहे हो, तुम्हारा रेवेन्यू एक्स अमाउंट है एंड यू आर अर्निंग अ वाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लुकिंग एट दैट प्रॉफिट, विल देयर बी न्यू एंट्रेंट इन द इंडस्ट्री? अगर न्यू कंपनीज आएंगे इंडस्ट्री में, तो तुम्हारा मार्केट शेयर कम होएगा। देन हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू अश्योर के एवरी ईयर द ग्रोथ रेट इज गोइंग टू रिमेन द सेम? देयर विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड यू। अरे यस ना, बोलता है ऐसा कैसा? तू बोलता है एवरी ईयर 50 साल तक 5% से बढ़ेगा। बोला मार्केट भी है कि नहीं, चेक कर पहले उतना। अगर तू मार्केट में बैठा है तो फिर नया लोग भी आएगा, नया लोग आएगा तो तेरा शेयर कम होगा ही होगा। So you cannot simply hypothetically assume that every year my growth rate is going to remain the same. Either it will become steady or stagnant at some point of time, or it will start decreasing. Simple law of economics. It will go up, remain stable, and then come down. Inverted U curve तो बनेगा ही बनेगा. So beyond a period of 5-6 years, you cannot assume an increasing growth rate. Either it's a steady growth rate or start decreasing. Decreasing is always more realistic. Are you getting it? It says अभी इतना लेवल का सम्स आता नहीं है, वो तेरे को 10 साल का प्रोजेक्शंस करने नहीं बोलेगा, वो अपना काम भी नहीं है, वो मैनेजमेंट करेगा, या अपने को उतना डेटा चाहिए तो अपन कर सके, वरना वो पॉसिबल नहीं है। बट देन दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कीप इन माइंड। However, the growth rate shall not exceed the long-term average growth rate of the product, industry or country or countries of the operation. तो इंडस्ट्री 25% पर 10% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, और तू भाई साहब बोल रहा है कि तू 50% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज होता जा रहा है। कहां से, किस हिसाब से, क्या लॉजिक है? कोई सेंस बनता नहीं है। जब इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रहा है तो तू कैसे ग्रो हो रहा है उसमें? आर गेटिंग इट? सॉरी। Composition of future cash flows, projections of cash inflows from continuing use, projection of cash outflows from the that are necessary to generate the cash inflows and can be directly attributed or allocated on a reasonable and consistent basis to the asset. So again, we need a cash flow which are required to generate the cash inflows. That's how the thing is to be. Yes or no? Next. Oh, right. Net cash flow, if any, to be received or paid for the disposal of the asset at the end of its useful life. वो आएगा बराबर। Estimated future cash flows shall not include, number 1, cash flows from the financing activity. Number 2, tax receipts and payments. Either cash flow or the discount rate should be reflected, should reflect the effect of general inflation. दोनों में से कोई एक एडजस्ट करो, या तो जो रेट ले रहे हो डिस्काउंटिंग का, इट शुड बी आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशनरी एलिमेंट्स, या फिर कैश फ्लोज को इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर लो। दोनों को करने का नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। व्हाट रेट शुड बी कंसिडर्ड? व्हाट रेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन आ ही नहीं सकता है, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव टू द एंटिटी। इसमें लिखा हुआ, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन नहीं है, रेट तो देना ही पड़ेगा उसको, वरना सम ही सॉल्व नहीं होगा। लेकिन then what is, if you go in a practical world and if you have to do it for yourself as a businessman, then what is the rate to be considered? Look at it. Discounting rate should be the pre-tax rate that reflects the current market assessment of time value of money and the risk specific to the asset for which cash flows are estimated. That is, look at this, that is, it is a return that investor would require if they were to choose an investment that would generate cash flow of amount, timing and risk equivalent to those that entity expects to derive from the asset. Say for example, मेरा जो asset है, जैसा hypothetical example है, don't stick to the words, stick to the meaning of it. समझो मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया asset में, और मैं एक्सपेक्ट करता कि इससे मुझे एवरी ईयर 10 रुपया मिलेगा, मैं 10% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, so that is the rate of interest which should be used for discounting. तो अगर मेरे पास चॉइस होता कि मैं असेट, ये जो असेट जिसका बात हो रहा है, वो असेट में पैसा डाल के इसका रिटर्न्स लूं या पैरेलली किसी और चीज में इन्वेस्ट करूं, तो वो जिस इन्वेस्टमेंट में करके जो कमा सकता था वो यहां पे अप्लाई करो। हियर दे आर यूजिंग द लॉजिक ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कि भाई जो पैसा इसमें गया इसमें नहीं गया होता तो उधर गया होता, उधर गया होता तो कितना मिलता, फिर इसमें लगा दे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, बट देन
प्रैक्टिकली तुमको देखना पड़ेगा. एवरी एंटिटी फॉर एवरी एसेट थिंग्स वुड बी डिफरेंट. The rate can be estimated from the rate implicit in the current market transaction for the similar asset or from the WACC of the listed entity that has a single asset under review. Don't take it very lightly. This rate can be estimated from the rate implicit in the current market transaction. ऐसे ही asset अगर market में बिक रहा है और कोई खरीद रहा है तो उसके अंदर जो implied rate of interest है, अगर लीज ट्रांजेक्शन हुआ तो उसमें भी implied rate of interest चार्ज होता है उसके हिसाब से, लेकिन तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं. मार्केट ट्रांजैक्शन में जो इंप्लाइड रेट है वो उसके हिसाब से डिस्काउंटिंग होना चाहिए. तुम ये नहीं बोल सकते कि देख मैंने अगर इसको लीज पे दिया होता तो मैं इसमें 10% लगाता हूं, तेरा तू भाड़ में जा. मार्केट ट्रांजैक्शन में दो इंडिपेंडेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अगर ये ट्रांजैक्शन किया होता तो वो लोग क्या चार्ज करते उसके हिसाब से. वो नहीं है तो लुक एट द सेकंड वन, वैक. व्हाट इज वैक? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लेकिन किसका? तेरा नहीं. एक ऐसा एंटिटी ढूंढ जो लिस्टेड हो और वो एंटिटी ऐसा होना चाहिए जिसके पास जो असेट का तू वैल्यूएशन कर रहा है ना वो एज अ सिंगल लार्ज असेट होना चाहिए. उसका वैक. सी बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट योर वैक यू मे हैव 10 डिफरेंट असेट्स, यू मे हैव 10 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग इट. यस सर. तो वो सब मिल मिला के तुमने अपना खुद का एंटिटी का एक वैक ढूंढ के रखा है. तो उसमें ये असेट का ही खाली इनफ्लोज और आउटफ्लोज थोड़ी इंक्लूड है, उसमें तो पूरा बिजनेस तुमने कंसिडर कर लिया, तो नहीं चलेगा तुम्हारा वैक. तो बोला तो क्या करूं? बोला ऐसा एंटिटी ढूंढ जिसके पास जिस एसेट का वैल्यूएशन है ना वो एज अ सिंगल एसेट ही है और उसका वैक पकड़, क्योंकि अगर उसका सिंगल एसेट है तो दैट वैक रिप्रेजेंट्स ओनली द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ दैट एसेट ना. तेरा वैक रिप्रेजेंट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ 10 डिफरेंट एसेट्स. वो नहीं चाहिए मुझे. खाली ऐसा एंटिटी जिसके पास ये एक ही एसेट हो और उसका अगर वैक है तो वो ले ले और वो लिस्टेड भी होना चाहिए. मिलता है तो ठीक है, वरना ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला रेट है ही तुम्हारे पास. बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? डिफिकल्ट एट सर्टन लेवल्स, इजी एट सम अदर लेवल्स. वो आगे चल के समझेगा, तुम अभी नहीं समझेगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोलो. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज मच मोर एज्यूम्ड एंड गवर्न्ड बाय द लॉ इटसेल्फ. कंपनीज एक्ट में लिख के दे दिया करो, फिर वो नहीं. और वो डेप्रिसिएशन जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, समझो we are looking at the whole standard as of now only from one asset point of view. अभी धीरे धीरे ये horizon बढ़ता जाएगा. There will be a point where you will be impairing the entity as a whole. तब क्या करेंगे? फिर डेप्री का तो बात ही नहीं आएगा. थोड़ा और आगे जाएंगे तो पता चलेगा. अभी तो बहुत लिमिटेड रिव्यू कर रहे हैं हम लोग. पूरा मेजर चीज तो बाकी है. There's a bigger thing on the horizon. There's something known as CGU, impairment of corporate assets, impairment of goodwill, रिवर्सल ऑफ द इंपेयरमेंट ऑफ एंटिटी, सब कुछ आएगा. तभी वो लॉजिक काम नहीं करेगा. इसलिए मैंने बोला कि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना ये जो वैक वो सर्टन लेवल पे डिफिकल्ट है. मतलब ऐसा कोई असेट है जिसका यही एक मशीन हो, लेकिन ऐसा एक एंटिटी हो सकता है जिसके पास तेरा एक सेगमेंट हो एज अ मेन बिजनेस, वेर यू आर इंपेयरिंग द होल सेगमेंट. तेरे पास 3 सेगमेंट्स है, तू ए भी बनाता है, बी भी बनाता है, सी भी बनाता है. तुझे लग रहा है ए का जो भी प्रोसेस है ना पूरे का पूरा इंपेयर हो चुका है, तो तू प्रोसेस ए का इंपेयरमेंट चेक कर रहा है. तो फिर ऐसा लिस्टेड कंपनी हो सकता है जो सिर्फ ए में हो, बी और सी में ना हो. हाँ तो ले ले बैक उसका, वो इजी है. मशीन नॉट पॉसिबल. सेगमेंट, लार्जर असेट्स, वन प्लांट पॉसिबल. इसमें डाला हुआ है. इम्पॉसिबल रहेगा तो डालते भी नहीं है लोग. जरूरी नहीं है ना. तो यू हैव टू फाइंड, तू 3 चीज प्रोड्यूस कर रहा है. डज इट मीन कि कोई और कंपनी भी जबरदस्ती 3 करता रहेगा? वो सिर्फ ए करता रहेगा. अगर वो ए कर रहा है तो उसका वैक ले, अगर वो ए और एक्स कर रहा है तो मत ले. दैट्स व्हाट द कंडीशन इज. क्या है? सिंगल असेट, द वैक ऑफ द लिस्टेड एंटिटी दैट हैज अ सिंगल असेट अंडर रिव्यू. असेट पर से डज नॉट मीन वन मशीन आउट ओवर. हियर टू अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. बट देन हम लोग ने आगे किया नहीं है, यहाँ पे बतियाना सेंस नहीं बनता है. बट वो इतना डिफिकल्ट नहीं है. हर लेवल पे डिफिकल्ट नहीं है. सर्टेन लेवल पे डिफिकल्ट है, सर्टेन लेवल पे नहीं है. लार्जर द लेवल ऑफ एप्लीकेशन इट बिकम्स इजी. पूरा एक सेगमेंट का बात हो रहा है. अरे यस सर, देखेंगे आगे. और ऐसे भी रेट कैलकुलेशन इज नॉट अवर कंसर्न एज ऑफ नाउ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. चलो भी सम करना है कि कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है? X Limited is having a plant asset carrying amount of which is rupees 100 lakhs on 31/3/19. Its balance useful life is 5 years and the residual value at the end of the 5 year is 5 lakhs. Estimated future cash flows from using the plant in next 5 years are given to us. 2021, 22, 23, 24 and estimated cash flows. Calculate the value in use of the plant. If applicable, discount rate is 10% and also calculate the recoverable amount if the net selling price of the plant on 31/3
19 is 60 लाख। तो हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस ही कैलकुलेट कर लेंगे। अभी सब तो ढूंढने को बोल दिया है उसने, बचा क्या? विल कैलकुलेट एवरीथिंग। हाउ डू वी डू दैट? ऐसा क्वेश्चन, ऐसा अपना दिन बहुत अच्छा रहेगा एग्जामिनेशन का, तो ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आ सकता है। डोंट एक्सपेक्ट कि ये 16 मार्क का आएगा क्या। Calculation of impairment cost. No one writes anything, let me handle it, then you do what you're born for. चलो, we start with the carrying amount. आज का carrying amount दिया है क्या? Carrying amount on 31,319. Is it given to you directly? 100 lakhs. सीधा दे दिया 100 lakhs. ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? इसको किससे कंपेयर करना है? Recoverable amount. Recoverable amount is A. कितना दिया है? पहली बार सम पढ़ा ना, अभी समझ में आ जाना चाहिए कौन सा फिगर किधर है। ये ढूंढ रहे हो। वैल्यू इन यूज, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ईयर 1 2 3 4 5 5, देन कैश फ्लोज, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट द रेट ऑफ 10%, देन द प्रेजेंट वैल्यू इटसेल्फ। बराबर है? कैश फ्लोज क्या है फर्स्ट ईयर? Residual value of the asset. Either you can add it over here itself or you can show it separately. वो तुम पे है। अरे getting it है? Get me the present value straight. GT. फाइनल में तो कर दे। करूँ क्या? मेरे को एक वैल्यू बता, प्रेजेंट वैल्यू बता। भाई साहब ने समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स वहां से बता रहा है मेरे को। और समेशन क्यों चाहिए तेरे को? यू कैन नॉट यूज द समेशन ना, द अमाउंट आर डिफरेंट आउट हियर। नहीं हो रहा है तो बोलते जाओ, फैक्टर्स लिखते जा रहा हूं मैं। 0.909, 0.826, 0.79 समथिंग। तीसरे साल का, पहला 2 साल बराबर है। चेक करो बेटर। 0.7 75, मैं बोला 7 था, तू 5 समथिंग बोला। 7 बोला क्या तू? 6 से 3 तू मल्टीप्लाई करके दे दो। 571 आंटी, 100 रुपए का तो असेट है। 121.45। check that. Check. You can write later on. First check whether they are saying is right or wrong. Take 4. That is not an issue. Rounding of difference. वो FM में सिखाते 4 डेसिमल लेने का, तो 4 लो। तुम्हारा इंस्टीट्यूट ही कभी कभी 4 लेता है, कभी कभी 3 लेता है, उसका खुद का ही भरोसा नहीं है। टेक 3, इट्स ओके। टेक 4, इट्स ओके। चले 12196 था, अभी 95 समथिंग आ रहा था। अभी इसके पहले 95 समथिंग बोला था, इसलिए उसको राउंड ऑफ करके मैंने 6 किया था। अभी 6 को 7 करने को बोल रहे हैं। चलो ठीक है, तो बाहर ले रहा हूं इसको। 121.97, सो विच इज हायर? 121.97, 21.95। therefore what is the impairment loss? 21.97. yes or no? No. Recoverable amount is more than the carrying amount. डिफरेंस नहीं निकालने का है, कॉमन सेंस यूज करो। असेट का वैल्यू कैरिंग अमाउंट 100 रुपया, रिकवरेबल 121, ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट और इम्पेयर नहीं है असेट जबरदस्ती। अच्छा, बाकी का 2 सम है सेम लाइंस पे। फॉर्मेट मोटा मोटी वुड रिमेन द सेम। फॉर्मेट इज नॉट कंपल्सरी, यू कैन हैंडल द वे यू वांट, तुमको करना है। NDA Limited acquired the machine for 32 lakhs on 31/11/18. Okay, the machine has 5 years life with 5 lakhs salvage value and depreciation using straight line method on 31/3/19. The same year end, a test of impairment reveals the following: present value so and so, net selling price so and so, salvage value nil.
Assuming the loss of impairment recognized in the what should do? So I'll use the same format. Question number 12. What's the carrying amount? Well, we'll have to calculate that. What's the original cost of 30 minus 32 lakh minus salvage value of 5 lakhs. Divided by what's the estimated life? 3 months. 5 years है ना? 60 months into current year का कितना महीना है? खरीदा कब है? दिसंबर और 3 महीने. ठीक है, 4 महीना. बराबर है? कितना आ रहा है? 2020, राइट? FE minus CTS. EIU 1350. What's the recoverable? Therefore, what is the impairment loss? 3,70,000. ये करने के बाद हमेशा एक चीज करने का. Therefore, revised carrying amount. What is the revised carrying amount? 1320 minus 1470. 1550 is the revised carrying amount. बराबर है? तुम्हारे बुक्स में वैल्यू विल बी 15,50,000. तो मैडम मेरे को बताओ अभी डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करो? When your value of asset is 1550, depreciation should be charged on. Then why there was a question? Depreciation for 2020. Fully. Anyone has calculated? Say. Anyone has calculated? कहते को टम्बलर को 15,50,000 minus 0 divided by 56 months in 12 months. Why 4? Divided by 4 क्यों? No. Out of 60 months, out of 5 years, only 4 months have gone by, na? So 60 minus this, na? The remaining life is 56 months. Why 4 years? और तू क्या कर रहा था? वो छोड़, आरवी क्यों लिया 5 lakhs? जबकि उन लोगों ने सैलरी वैल्यू नील करके दिया तेरे को. And we thought we knew depth. Amount 3,32,149. क्या बोल रहे हो? समझ 3,32 बस ना. 332 बरोबर है ना? 2 रुपए के लिए रो मत. 3 लाख में 2-3 रुपए के लिए रो मत. ये इसलिए बोल रहा हूं. ये उतना कमाई लोगे. ये वर्किंग. ये हाँ खरीदा तुमने 18 में. इम्पेयरमेंट कर रहे हो उसी साल के एंड में 4 महीने बाद. और डेप्री मांगा है नेक्स्ट ईयर का 1/4/18 से लेके 31st of March 19 और बाद में टिल 31st of March 20. बीच में नवंबर 2018 में खरीदा. 4 महीना करंट ईयर का डेप्री. यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया. अभी ये साल का डेप्री मांग रहा है. क्या प्रॉब्लम है? ये भी लिखेगा तुम. तो सम में लिखा है ये इंफॉर्मेशन. बाय द वे नीड थर्ड सम क्विक. योर लेक्चर इज 12:30 to 2. Shall I read the third one now? Yes. Uttaranchal Industries Limited gives the following estimate of cash flows relating to fixed assets on 31/12/2019. The discount rate is 15%. Cash year 2021, 22, 23, 24 5 years हो गया. Cash inflows आ गया. Residual value at the end of 2024 is 500 lakhs. Fixed assets purchased on 1/1/17 for 20,000 lakhs. Useful life is 8 years. Net selling price is 10,000 lakhs. Calculate 1, 2, 3, 4, 5. In short, सब कुछ मांगा है. Carrying amount on 2019, VIU, recoverable amount, in impairment loss, revised carrying amount, depreciation for next year. तो सभी तो मान लिया. तो सेम टाइप का समझ नहीं है. बट मिस्टेक करने का नहीं. What happens? Say
Take your time. I'm not doing it. You want that sum? होता है स्टार्टिंग में मेरे लेक्चर में बच्चे लोग को तकलीफ होता है because they are used to copy the sum from the board and I don't do it at all. What's the carrying amount? Sorry, what's the original cost? 20,000. What's the residual value? What's the life? 5 months. 8 years. Into how many years are already gone by? So what is the carrying amount today? 1268 point 7.68. कुछ लोगों ने कैरिंग अमाउंट 20,000 लिया है. मतलब जिस दिन खरीदा उस दिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो तुम लोग. बाजू वाले ने लिया तब तक तो लेना ही चाहिए नहीं. और कुछ लोगों ने कैलकुलेट ही नहीं किया ये सोच के कि पता नहीं क्या राइट है और क्या रॉन्ग है. तो तेरा प्रॉब्लम है. इन एग्जामिनेशन आई एम नॉट गोइंग टू बी देयर. डोंट टॉक नॉनसेंस. FA minus CTS here 1 2 3 4 5 5. Cash flows present value factors at the rate of 15% and the PV itself. Wait. The needful, get me the answer. 951. I don't know, check. 07 or 3. ठीक है मैम. व्हाट्स योर्स? प्रेजेंट वैल्यू कितना डेसिमल? तो अलग अलग कैसे रहा? 3 में अलग अलग कैसे आ रहा? अरे तो भी 1 2 0 7 and 1 0. Yeah. So which is higher? So what is the impairment loss? Oh, 687. Revised carrying amount 10,000. Depreciation for next year. What is the year depreciation for? 10,500 upon remaining years are 5 years. Follow. I need a confirmation on all this. Yes. And that's all for the day.